ये कोई खेल नहीं है जो मैं किसी के मौज या अपने मनोरंजन के लिए खेल रहा हूँ, ये एक लड़ाई है जो हमका जीतनी है। 3 lakh people taking the CAT every year. Does the competition still make sense? Should one even try? So MBA क्यों करना चाहिए? That is the first question you have to ask yourself, right? One was a 99.5 percentiler. And he told me that I do not have any calls from any Blackie IIM. Is merit being discouraged here somewhere? यार सब एप्लीकेंट्स को एक रूम में इकट्ठा कर दो जिनको 90% के ऊपर है, ठीक है, और ऊपर से पत्थर फेंको, जो 100 लोग को पत्थर लगेगा उनको एडमिशन देंगे IIM अहमदाबाद के अंदर। IIM अहमदाबाद will have a good bunch of candidates. Are people on an average becoming smarter? The margins will keep on becoming thinner and thinner. आगे जाके शायद और भी होगा. People will want to move gradually away from MBA. But do you think tier 2 schools are worth it? I think that will be foolish on my end to expect that, right? Till the time you reach, say, IIM Sambalpur or Bodh Gaya or Amritsar or whatever, placements drop. What all happens behind the scenes in the PlaceCom? Is there toxicity? Is there favoritism? So that is possibly the happiest memory of my MBA. What exactly can be done in order to get the highest placement? I didn't mind going and making a fool of myself in front of people. As the years passed, ISB kind of hit its peak. Abhi I think that there are too many people in ISB. अगला ISB कौन सा कॉलेज बन सकता है? Hello everyone, my name is Shlok and today I'm bringing you one of the biggest names in the CAT industry, Dr. Shashank Prabhu, CAT 100 percentiler, CET rank 1 and running his own venture currently, Point99. So I'm really excited to be here today with you, sir. Thank you so much for being here with us. Thank you, Shlok, for the invitation. I'm really looking forward to interacting with the audience here. I have seen your channel grow. So hoping for a wonderful interaction with you and all the viewers of this. You know, looking at the current landscape, we have more than close to 3 lakh people taking the CAT every year. And if you really look at it, the premier seats are only, let's say, 5,000 or even less than that. So what do you think is, does the competition still make sense? Should one even try, or how should one go about handling this? So see, the competitive वाला bit came a lot later in the life cycle of that decision making thing, right? तो होता ही है that first to decide to do an MBA. So MBA क्यों करना चाहिए? That is the first question you have to ask yourself, right? So there could be many reasons. तो business administration मुझे करना है. But when is it that I really became curious about how a business is run? क्या क्या उसमें aspects होते हैं, वो मुझे excite कर रहे हैं कि नहीं, वो मुझे समझना बहुत ज़रूरी है पहले तो. So if let's say for example I look at an advertisement and मैं सिर्फ उसको देख के खुश होके I don't really finish it off then and there, right? सोचते हैं कि भाई इन्होंने यही एडवर्टाइजमेंट क्यों बनाया, यही वर्ड्स क्यों यूज़ किए, ये लैंग्वेज क्यों यूज़ किया, किसकी तरफ टारगेट कर रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट करने से उनके सेल्स में कितना ग्रोथ होगा. मे बी यू फॉलो देयर रेवेन्यूज एज वेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड सी के क्या चल रहा है. अगर ऐसा कुछ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स, यू डू अ वेरी बेसिक थिंग, यू गो टू अ शॉप एंड देन स्टार्ट वंडरिंग कि अरे ये शॉप का डेली टर्नओवर कितना होगा, मार्जिन कितना होगा, हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर बी एक्चुअली मेकिंग, अगर इनको दूसरा एक शॉप खोलना है तो वो क्यों नहीं खोल रहे हैं. So all those things basically are the ones that should intrigue someone to go for an MBA. So that is the first part. तो इसके लिए किसी ने MBA करना चाहिए. उसके बाद आता है competition. Now MBA करने के लिए या एक मैनेजर बनने के लिए there are a lot of ways in which one can proceed. एक काम तो ये करो कि कोई कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, मे बी स्पेंड 8-10 years इन द इंडस्ट्री, धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते जाओ, धीरे धीरे ग्रो करते जाओ, रीच अ लेवल वेर इन देर आर 5 or 6 people रिपोर्टिंग टू यू, यू आर मे बी गवर्निंग अ सर्टन टेरिटरी. ये सारी चीज़ें करो तो बन जाओगे मैनेजर. येस, तो उसके लिए MBA की ज़रूरत ही नहीं है ऑनेस्टली. द अदर वे राउंड इज यू गो फॉर CAT, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, एंड दे क्रैक द टेस्ट, क्रैक द इंटरव्यूज, गेट इन टू अ कॉलेज, देन गेट इन टू अ जॉब. वो कर सकते हैं. या फिर लेट्स से इफ दिस इज टू ओवरवेलमिंग फॉर समवन, तो ये भी कर सकते हो दैट मे बी 5 years डाउन द लाइन यू गो फॉर एन एग्जीक्यूटिव MBA, जिसमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है एंड देर आर गुड ब्रांड्स दैट आर देयर. और आगे जाना है तो यू कैन गो अब्रॉड एज वेल. तो बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड MBA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू आंसर योर सेल्फ. बाकी किसी को बताओ नहीं बताओ फर्क नहीं पड़ता, बट खुद को बताना चाहिए एटलीस्ट. एंड द सेकेंड थिंग इज देन यू डिसाइड विच पाथ सूट्स यू द बेस्ट. सो इफ यू आर अ कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल, तुमको पता है कि यार हो जाएगा. And 5,000 is a very conservative number, honestly. I think anybody who gets an 85 or a 90 percentile at the CAT is going to be a decent enough manager. आगे जाके अगर मतलब same thing continue करे तो.
So I would say that there are a lot more opportunities that are available year on year. तो इतना competitive भी नहीं है अगर देखते हो तो 85-90 परसेंटाइल निकाल सकते हैं with 8-10 months of effort. Anybody can get that 85-90 at least. That is a starting point. तो वहाँ से कर सकते हो. Just because 3 lakh people are taking the test and there are say 21 IIMs that are there, doesn't mean that someone gives up बीच में and decides to not take the test itself. तो वो नहीं करना है. Just understand what the competition is like and then see which career path or which path will take you to your destination in the most efficient manner. So that is basically what I would say people. Understood, sir. And you mentioned about competition, but the thing is, I took a lot of MBA interviews, met a lot of people in the interview waiting rooms, and they told me one was a 99.5 percentiler, and he told me that I do not have any calls from any Blackie IIM. So what do you think is merit being discouraged here somewhere? What is exactly happening here, sir? It's demand and supply, right? This is a concept that you will also learn in the first semester of your MBA. So demand and supply is basically is something that governs everything. थोड़ा और पीछे जाते हैं. आई डोंट नो मेनी पीपल वुड नॉट हैव बीन बॉर्न बाय देन एज वेल, जो बोलते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो बोलते हैं 91-92 के रिफॉर्म्स एंड थिंग्स दैट ओपनड अप बैक देन. उसके पहले MBA इतना ज़्यादा एज अ स्ट्रीम वैल्यूड नहीं था शायद. उसके बाद भी when a lot of companies started setting up their campuses, their offices in India, उस टाइम पे there was a dearth of good managers, trained managers जिनको वो लोग हायर कर सके. फिर धीरे धीरे MBA started rising. Mid 2000s, 2007, 8, 9 I think were the peak years जहाँ पे MBA का बहुत ज़्यादा मतलब प्रचार हुआ so to say, and that is basically when a lot of people got to know कि अच्छा MBA होता है, ये colleges में जाएंगे तो इतना salary मिलेगा. So that salary वाला bit started getting associated with MBA back then. Now what is happening is everybody knows कि भाई ये हो रहा है करके, and because there is a lot of knowledge, a lot of people are trying to get into B schools. मतलब quality जो भी अच्छा निकल रहा है from IITs, NITs, BITS, SRCCs, जो भी colleges में से निकल रहे हैं top colleges से, all those people want to get that fruit. मतलब सबको वही चीज़ चाहिए because of which there is intense competition. Now, to be very honest, 99.5 percentiler I understand, but then again 99 percentiler और 99.5 percentiler में बहुत ज़्यादा gap नहीं होता. And even the IIMs recognize this, I'm sure, because of which they have started adding a lot of different parameters कि 10th के marks देख लिए, 12th के देख लिए, जो भी. So all those things come into the picture and एक wholesome candidature एक बनता है किसी का, उसको वो लोग judge कर रहे हैं, not just on the basis of CAT scores. Now it's unfortunate, right? I understand 99.5% निकालना is no joke in this competitive environment. जहाँ पे margins इतने thin होते हैं. So 99.5 percentilers not getting into black eyes is fine. मतलब you still have the XLRIs, the FMSs of the world. जहाँ पे भी तुम जाओगे तुम्हारा career बहुत ज़्यादा differently pan out नहीं होगा. So instead of feeling bad about what has not happened, you basically tell yourself that the institute didn't deserve me. I deserve something better. And you move on to better things in life. And there is life beyond IIMs as well. मतलब you can always try for a Harvard or something and become a global मतलब manager or a global leader kind of a thing. वो भी कर सकते हो, करना है तो. But मतलब ठीक है, I know there is going to be a momentary disappointment कि नहीं मिला call. But then people who are good enough to get that 99.5, 99.7, I've heard 99.7s as well not getting black eyes. But if you are good enough to do that, then definitely you are made for good things in life. Maybe not now, 2 साल के बाद कोई अच्छी चीज़ें होंगी life के अंदर. So with that belief you go forward. So, sir, you mentioned about past academics being one of the factors which determine your candidature essentially. So, what is the logic? Why are the things that are no longer in your control, for example, your 10th and your 12th, why are these being taken as factors to judge, let's say, your candidature? So, see, historically, again, I'll go back थोड़ा सा. 2006, 2007, उस टाइम के CAT के कट-ऑफ्स अगर देखो ना, तो यू विल रियलाइज दैट एंड IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा. बैंगलोर उस टाइम पे भी शायद थोड़ा प्रोफाइल देखता था, बट अहमदाबाद एंड कैलकाटा डिड नॉट यूज टू लुक एट योर प्रोफाइल एट ऑल. So if you get a 99.2, 99.3 percentile, typically you will end up getting black eye. And उस टाइम पे black eye ही था. You didn't have शिलोंग, रायपुर, रोहतक, रांची, तिरची, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे. तो उस टाइम पे दे यूज्ड टू लुक एट ओनली योर कैट का परसेंटाइल. वो क्यों होता था? बिकॉज उस टाइम पे दी कोचिंग इंडस्ट्री, सो टू से, अगर इंडस्ट्रीज को बोल सकते हैं तो, दैट वाज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड. नॉट एवरीबडी हैड एक्सेस टू क्वालिटी कंटेंट. इसके लिए जो मार्जिन होते थे ना, उतने थिन नहीं होते थे. योर 100 परसेंटाइल यूज्ड टू गेट 60% ऑफ द ओवरऑल स्कोर. 50% अगर निकाल रहे हो, यू विल डेफिनेटली गेट अ ब्लैक आई. 40% अगर निकाल रहे हो, LIK तक तो मिल ही जाएगा. दैट यूज्ड टू बी दी मार्जिन दैट यूज्ड टू बी देयर.
आज के ज़माने में इफ़ द सेम पेपर इज इंट्रोड्यूस्ड, आई एम श्योर दैट पीपल विल स्कोर हेवीली इन दोज टेस्ट. मतलब तुम्हारा टॉपर शायद 80% के आसपास होगा. उतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, उतने मार्जिन्स थिन हो गए हैं. Now, because the margins have grown thinner, the IIMs also recognize the fact that CAT is, at the end of the day, it's a matter of one day. उस दिन किसी ने अच्छा काम कर लिया, they end up doing really well. And किसी ने नहीं किया तो of course they will not do well, obviously. But the idea is what kind of people do you need entering the institute? तो वो धीरे धीरे parameters change हुए हैं. So when we look at early 2000s, mid 2000s, late 2000s, 2010 तक भी बात अगर मैं करूँ, तो उस टाइम पे they needed people जिनके पास बहुत सारे ideas है, जो एक कंपनी को मे बी 20, 25, 30, 40% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर सकते हैं. दैट वॉज द काइंड ऑफ मैन पावर और द ब्रेन्स दैट वेर रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम. आज के ज़माने में काफ़ी सैचुरेट हो गए हैं मार्केट्स. इफ यू लुक एट द FMCGs एंड ऑल, दे आर स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट कि भाई नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा क्या आने वाला है करके. सो इट्स ईदर मेंटेन मार्केट शेयर और अक्वायर सम कंपनीज एंड ट्राई टू गेट द मार्केट शेयर फ्रॉम देयर. The jobs have also become slightly boring, to be very honest. I did this podcast with Abid Hassan, who is the founder of Sensible, and he mentioned a very interesting thing. Let's say someone does their MBA, and one of the top jobs that people want is investment banking. ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बैंकर करता क्या है? तो इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर एक कोई कंपनी के लिए फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर दे आर ट्राइंग टू फ्लोट एन IPO, they will have to read all the taxation documents that are there and they will have to create an entire prospectus जो होता है draft red herring prospectus, DHR पे जो बोलते हैं, वो करना पड़ता है. Now that is a tedious job. It's not something कि बैठे किया और हो गया, ऐसा नहीं है. You have to painstakingly go through each and every clause, सब ठीक है कि नहीं, सब जगह पे सब बताया है कि नहीं, all these things you have to do. That is basically what fresh investment bankers generally do. Now they don't want people जिनका एक दिन का परफॉर्मेंस विल डिक्टेट कि उनका लाइफ कैसे चल रहा है. वहाँ पे दे विल वांट पीपल जो सालों से ये चीज़ कर रहे हैं, दे आर यूज्ड टू एकेडमिक रिगर, लेट्स से, एंड दे हैव परफॉर्म्ड वेल इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस. सो एवरीथिंग कम्स टुगेदर एंड पीपल हु हैव अ 999, लेट्स से 9, 10, 12 ग्रेजुएशन में, दे हैव शोन एकेडमिक एक्सीलेंस ओवर 15 years ऑफ देयर करियर. मतलब इट्स नॉट अ जोक. तो वो लेके अगर किसी को 99 परसेंटाइल मिल रहा है, and there is someone with a 99.5 percentile with a 888 in their 10th 12th grad, then उनके लिए that 0.5 percentile and ये 111 का जो gap है, this 111 का gap wins. So that is basically the thing that is happening at this point in time. Yes, there are a lot of parameters that have entered. Gradually they have entered, but again it's demand supply. There is so much of supply of good candidates that are there that the IIMs can do whatever. मतलब I am telling you, एक चीज़ कर सकते हैं, मतलब it's just an experimental thing. यार सब applicants को एक रूम में इकट्ठा कर दो जिनको 90% के ऊपर है, ठीक है, और ऊपर से पत्थर फेंको, 100 पत्थर फेंको, जो 100 लोग को पत्थर लगेगा उनको एडमिशन देंगे IIM अहमदाबाद के अंदर. I still think IIM अहमदाबाद will have a good bunch of candidates in that batch. तो इतना ज़्यादा मतलब टैलेंट एग्जिस्ट करता है at this point in time. So it's very difficult for them to select. So that's why these parameters have come in. Understood, sir. And you mentioned one interesting aspect कि पहले 40% में आपको मिल जाता था LKI, and now that and the topper used to be at close to 50 or 60%, and now it is at 80%, and we saw the ZAT के cutoffs also going up this year, contrary to what we had expected. A lot of people were expecting. So what do you think, sir? Are people on an average becoming smarter? So see, it's a game of margins at the end of the day. I generally like to draw this kind of parallel with movies, cricket, let's say, and education in general. अब मूवीज़ अगर 1950s के मूवीज़ देखो तो वहाँ पे कुछ टेक्निक्स नहीं हुआ करते थे, तो सिनेमैटिक टेक्निक्स बहुत ही कम डेवलप हुआ करते थे. मतलब इट यूज टू बी अ बिग थिंग फॉर समवन टू कट वन फिल्म, इंसर्ट अनदर फिल्म एंड देन कम बैक टू इट. तो वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट वाज रियली मतलब क्रेजी इन 1940s एंड 50s वाज कि मैंने 2 सीन्स शूट किए, फिर यहाँ से कुछ कट किया, इसका पार्ट यहाँ पे इंसर्ट किया, एंड देन आई डिड अ 2 सीन काइंड ऑफ अ थिंग, विच इज लोग सोचते भी नहीं आज उसके बारे में. बट इट बिकेम प्रोफेशनल ग्रेजुअली. पीपल रियलाइज दैट दिस कुड बी अ थिंग जहाँ से मुझे पैसा मिल सकता है. एंड देन यू गॉट प्रोफेशनल एक्टर्स, यू गॉट प्रोडक्शन हाउसेस, जो लोग ये सोचते हैं कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से मुझे कितना पैसा मिलेगा. एंड नाउ इट बिकेम ऑल इकोनॉमिक्स ड्रिवन. सेम थिंग गोज विद क्रिकेट एज वेल. So I'm sure that in the era of the Patodis and stuff, they didn't have to play cricket to feed their families. यार मतलब उनको जाके पैसा कमाना करके क्रिकेट नहीं खेलते थे. They used to play cricket because it used to be fun for them. वो लोग शायद फील्डिंग भी नहीं करते होंगे, तो they were not very professional cricketers जो हम लोग आज बोलते हैं. But after let's say 83 का World Cup, after 96 का World Cup, after maybe IPL, now people are realizing that there is money to be made in this sport. जैसे ही पैसा आ जाता है चीज़ के अंदर, जैसे यू रियलाइज कि देर इज गुड मनी दैट इज गोइंग टू बी हियर, मार्जिन्स थिन होते जाते हैं.
everybody wants to be technically correct. Plus with the growth of the entire IT thing, information technology इतना बढ़ गया है, people have information, मतलब कुछ करना भी नहीं पड़े, घर पे बैठ के तुम पूरा का पूरा प्रिपेयर कर सकते हो. You can learn whatever sport you want to, you can maybe implement the learning by going and playing. It's become very easy now. तो इसके लिए मार्जिन्स थिन होते जा रहे हैं. सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग उस टाइम पे इतना सारा मटेरियल मिलना यूट्यूब पे वाज अ क्रेजी थिंग. मतलब आई कुडंट इवन एक्सपेक्ट ये होगा करके. अगर है तो भी स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, स्ट्रीम का तो भी क्वालिटी नहीं होगा. ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू बी देयर, बट नाउ इट्स क्रेजी हाउ मच कंटेंट यू कैन हैव ऑन योर मोबाइल फोन. And because of that, everybody is exposed to similar content, so definitely the margins will keep on becoming thinner and thinner. आगे जाके शायद और भी होगा, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम फिर वही वो डिमांड सप्लाई का इक्वेशन आ जाता है. इक्विलिब्रियम हैज़ टू बी अचीव्ड इन एनी सिस्टम. सो एट सम पॉइंट इन टाइम अगर बहुत कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है, देन पीपल विल स्लोली स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ कि भाई ये नहीं करते, कुछ और करते जहाँ पे ज़्यादा स्कोप है. मे बी AI कुड बी दैट थिंग, मे बी डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, कुछ भी हो सकता है. But people will want to move gradually away from MBA if there is an oversupply and the demand stays constant. So that is something that we might see in the coming few years. So, sir, one interesting aspect you mentioned was ISB also in one of the answers you gave. So, did ISB hold the same amount of prestige, let's say, 15 years ago, or it's just a recent phenomenon? Gradually it has grown. So I remember, honestly, there used to be this topic of discussion that we used to have, right? उस टाइम पे मतलब 2008, 9, 10 के आसपास कि which colleges have recently opened that have the same stature as that of the IIMs, XLR, FMS. Because IIM A and C, if I remember correctly, 1961 में start हुए थे. B started a bit later. FMS has been around since 1954, if I'm not wrong. XLR है also around that same time. तो ये सारे colleges काफ़ी पुराने हैं. उसके बाद IIM लखनऊ आई थिंक केम अप इन 1994 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड कुछ टाइम आई थिंक 2004 इफ आई रिमेंबर करेक्टली वाज व्हेन कोझिकोड एंड इंदौर स्टार्टेड. सो दैट वाज बेसिकली द वे इन विच कॉलेजेस हैड स्टार्टेड बैक देन. तो वहाँ पे एक चीज़ हुआ करता था कि अभी कौन सा नेक्स्ट कॉलेज आएगा जो ये स्टेचर पे पहुँच सकता है, एंड ऑल द नीटीज एंड ऑल वेयर अराउंड ऑफ कोर्स. तो उस टाइम पे ISB यूज्ड टू बी टॉक्ड अबाउट हाईली बिकॉज नया प्रोग्राम था. नॉट अ लॉट ऑफ कॉलेजेस हैड दैट काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, 1 ईयर का प्रोग्राम लेट्स से, जिसको मतलब सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स शायद अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन दे विल एंटर इनटू मिड मैनेजमेंट रोल्स. सो दैट वाज समथिंग जो पूरा ही नया चीज़ था, एंड दे हैड द स्ट्रेंथ, मतलब उनका फैकल्टी स्ट्रेंथ था that allowed them to float that kind of program, and we thought that they will be successful. So ISB came with a big reputation, so to say. तो पता था कि more or less successful हो सकता है करके. So now as the years passed, ISB kind of hit its peak. Abhi I think that there are too many people in ISB. Again, honest opinion, I don't know. I might be wrong, but from the stories that I keep on hearing from people who are a part of ISB, be it Hyderabad or Mohali, there are a lot of people, and फिर वो placements में थोड़ा reflect करता है कभी कभी, right? So I don't know what direction they are going to take आगे जाके, but even now if you look at it, ISB is something जिसको लोग ABC के साथ शायद कंपेयर करते हैं. इफ़ यू आर गेटिंग अ कन्वर्ट फ्रॉम ISB एंड ABC, यू विल एटलीस्ट थिंक फॉर अ डे कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए. समटाइम्स यू माइट ऑल्सो गो फॉर एन ISB, बट पीपल विल एटलीस्ट थिंक कि क्या करना चाहिए. सो सर, व्हाट डू यू थिंक अगला ISB कौन सा कॉलेज बन सकता है? I would never know. मतलब अभी तो you don't know what the intent is of people when they are opening colleges, right? We hear of these stories of say Bitsom, for example, right? It's a recent college, has come up एकदम shot to fame, but I don't know what direction they are going to take. या फिर let's say something like a Masters Union, for example. मतलब you never know what direction these colleges are going getting into. Because if you look at the philosophy of say IIM A, C, B जो भी वहाँ पे लॉन्च हुए थे उस टाइम पे, so it was because we had a dearth of managers, and अपने को managers चाहिए, तो जितने चाहिए उतना ही colleges होते थे. They were not meant to be profitable institutes, for example. But आजकल everything as I said is economy driven, profit driven. वो जैसी aspect आ जाता है, as soon as you are let's say 5 batches pass out from your institute, मेरा तुरंत उसके बाद का क्वेश्चन होगा कि मैं यहाँ से अपना रेवेन्यू 2x कैसे कर सकता हूँ. नाउ दैट विल बेसिकली मीन एडिंग मोर स्टूडेंट्स, फ्लोटिंग सिस्टर प्रोग्राम्स, ओपनिंग सिस्टर कैंपसेस, कुछ भी मैं कर सकता हूँ. जैसे ही मैं वो करता हूँ मेरा ब्रांड डाइल्यूट हो जाता है. नाउ दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इशू. सो इफ देयर इज अ कॉलेज विच सेज कि भाई कुछ भी हो जाए मैं 200 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं इतने ही लोगों को पढ़ाऊंगा लेट्स से, एंड देन दे कंटिन्यू विद दैट फिलोसॉफी. I know it's a very rigid philosophy. I don't think anybody will want to get into that thing in today's day and age. Even I might not want to do something like that. But unless ऐसा कुछ philosophy है कि मुझे 200 बेस्ट मैनेजर्स निकालने हैं ईयर ऑन ईयर, आई डोंट केयर अबाउट रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, वट एवर,
I don't see the next ISB or the next set of IIMs coming in the near future. And अभी भी colleges बहुत सारे हैं. जैसे जैसे you reach the 20th IIM, 21st IIM, नीति छोड़ दो, but till the time you reach say IIM संबलपुर और बोध गया और अमृतसर और whatever, placements drop. तो वो IIMs पहले ऊपर उठें, फिर कुछ philosophy change हो, some college comes and says कि भाई 200 ही लोगों को पढ़ाएंगे, but पढ़ाएंगे ढंग से पढ़ाएंगे. I don't see an ISB or a new IIM Ahmedabad coming up in the near future. So, sir, if we are talking about tier 2 schools, I'm not sure exactly what the definition of a tier 2 school is, but do you think tier 2 schools are worth it? So, see, it's a subjective question. As you said, right? Tier 2 क्या होता है? For someone who is looking at only IIM ABC, IIM K could be tier 2. Right? For someone who is looking at only Harvard, Stanford, Wharton, वो देख रहे हैं, उनके लिए IIM A will be tier 2. Right? Someone who is looking at say getting into a Wellinger or an SIS or something, उनके लिए some other college will be tier 2. तो हर एक के लिए tier 2 definition अलग vary करता है, right? Whatever you are easily going to get, that is tier 2 for a lot of people. जो easily मतलब achievable है, practical options हैं या safe options हैं, those are generally considered as tier 2 options. Now honestly, I would say चलो 90th percentile is what I define to be tier 2. 90th के नीचे जो decent opportunities देते हैं लोगों को, but one small criterion that exists is उनका average placement is less than the fee that they charge. Now वो ROI is a different story altogether, वो that's a discussion for some other day. But जहाँ पे भी ये वाला एक चीज़ होता है जो 90 के नीचे है, जहाँ पे तुम्हारा फी ज़्यादा है कंपेयर टू द प्लेसमेंट दैट यू आर इंटेंडिंग टू गेट और एवरेज प्लेसमेंट जो शायद तुमको मिलेगा, उसको मैं शायद tier 2 बुलाऊंगा, जो कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते. Now if someone has been preparing for the CAT for let's say a couple of years and पूरा मतलब दिल लगा के पूरा प्रिपरेशन किया अच्छे से, बट उसका नहीं हो रहा है, या फिर उसके अकैड्स उतने अच्छे नहीं है कि इंटरव्यूज के अंदर दे आर एबल टू जस्टिफाई इट, देन व्हाट आई वुड वांट इज भाई तुम MBA अपना कर लो. If you don't have a clear plan of overcoming whatever obstacles you have faced that led you to that 88, 90, 85 percentile जो भी है, take up the best option that you have, do your MBA properly, join a good organization, work for 3, 4, 5 years. उसके बाद तो तुम्हारा कॉलेज का ब्रांड मैटर नहीं करता typically. So if someone is in that situation जहाँ से उनको बाहर निकलने की कुछ जगह दिख नहीं रही है, I would suggest that भाई tier 2 colleges ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब ऐसा नहीं कि tier 2 colleges पूरे खाली चले जाते हैं, वो भी हाउसफुल ही होते हैं, मतलब वहाँ पे सीट्स भरते ही हैं. तो ऐसा नहीं है कि पीपल डोंट टेक दोज ऑप्शंस, राइट? जस्ट दैट अगर IIMs के अंदर तुमको 70% ऑफ द क्लास मिलेगा विच इज़ लाइक वेरी सीरियस अबाउट देयर करियर एंड वांट्स टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरीथिंग दैट दे कम अक्रॉस, शायद tier 2 कॉलेजेस में दैट परसेंटेज वुड फॉल टू 30%, वो हो सकता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट यू विल गेट. बट otherwise I don't think मतलब it is not a good idea to join a tier 2. ये तो मैं कभी नहीं बोलूँगा. It depends on what game or what sport you want to play. अभी कल को मैं बोलता हूँ कि यार I will run a race 100 meters को मैं 10.5 सेकंड के नीचे कंप्लीट करूँगा. I think that will be foolish on my end to expect that, right? हो सकता है, probability wise it is possible, yes. But क्या chances है यार, मतलब I don't know, right? मुझे फिट होना पड़ेगा, my muscle groups have to be developed, genetics भी होता है उसके अंदर, I have to have the proper coach, proper diet. अब जितने साल मुझे वो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे तब तक I might develop osteoarthritis something, I don't know, कुछ भी हो सकता है, right? So I should be practical. तो मैं वो गोल परस्यू नहीं करूँगा. I might have a goal of getting a platinum in a PlayStation game, वो मेरा गोल हो सकता है, because that is possible. Outrageous goals I won't pursue. तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, you have to decide whether the goal is achievable or not. अगर नहीं अचीवेबल है तो ठीक है, 5 साल काम करो, उसके बाद there is always the market is always open for good candidates, so वो definitely कर सकते हो. Makes sense, sir. Makes a lot of sense. So, sir, now let's jump into your own MBA journey. You told me you've been a part of the placement committee. So, what all happens behind the scenes in the PlaceCom? Is there toxicity? Is there favoritism? What all happens over there? So, placement committee has honestly been the best part of my MBA. Honestly, अगर 2 साल की बात करेंगे तो 6-7 महीने is what I spent. I think March से शुरू हुआ था मेरा stint and till November it was there. So it will be what, a good 8 months kind of a stint, right? So that is possibly the happiest memory of my MBA, to be very honest. अब फर्स्ट थिंग आई विल कवर कि प्लेसमेंट टीम करता क्या है, मतलब पीपल डोंट नो इट. इनफैक्ट इवन FMS में भी ऐसे कुछ रूमर्स होते थे दैट प्लेसमेंट कमेटी का जो रूम होता है, सो वी हैव अ डेडिकेटेड रूम काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे वी सिट एंड वर्क, राइट? उसके अंदर फ्रिज है, टीवी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है, कैसे बोलते थे लोग, ऐसा कुछ था नहीं ऑनेस्टली, बट लोग पीपल हैव दैट थिंग कि प्लेसमेंट कमेटी मतलब कुछ अलग लेवल पे चल रहा है, राइट? नाउ व्हाट डज अ प्लेसमेंट कमेटी डू और इज सपोज टू डू और व्हाट वी डिड.
देखो प्लेसमेंट कमेटी का सबसे पहला काम है इंश्योर करना है कि कॉलेज का प्लेसमेंट हो जाए, राइट? अब वो कैसे होगा? देर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. वन एस्पेक्ट एवरीबडी नोज, इन्वाइटिंग कंपनीज ऑन कैंपस. अब उसके लिए तुमको कोल्ड कॉलिंग करना पड़ता है. सो आई हैड 250 अकाउंट्स विथ मी. कुछ कंपनीज हैं जो FMS में कभी आई भी नहीं है, शायद कभी आएंगी भी नहीं, और फ़ोन करोगे तो गालियाँ देंगे कि हम आएंगे ही नहीं, तुमको जो करना है कर लो टाइप्स, राइट? सो वो कोल्ड कॉलिंग होगा पहले 200, 250, 300 कंपनीज को यू हैव टू सिट एंड कॉल. कुछ कंपनीज विल बी इंटरेस्टेड. नाउ यू गेट देम टू कैंपस, यू एंगेज देम, उनको बोलो गेस्ट लेक्चर्स करो, कॉम्पिटिशन्स फ्लोट करो, इंटर्नशिप के लिए किसी को लेके जाओ, लाइव प्रोजेक्ट्स दो, ऑल दोज थिंग्स आर देयर. एंड देन ऑफ कोर्स यू इन्वाइट देम फॉर द प्लेसमेंट्स. दैट इज द एंड गेम, वो होता है. अब ये तो एक एस्पेक्ट हो गया. नाउ द अदर एस्पेक्ट इज इफ अ कंपनी इज कमिंग टू कैंपस एंड द कैंडिडेट्स आर नॉट रेडी, तो कंपनी किसको लेके जाएगा, राइट? सो कैंडिडेट्स भी रेडी होने चाहिए. अब कैंडिडेट्स को रेडी करने के लिए बहुत सारे कमिटीज होते हैं कॉलेजेस के अंदर. मार्केटिंग कमिटी है, फाइनेंस है, ऑपरेशन है, जो भी है. विच एवर स्पेशलाइजेशन यू इंटेंड टू चूज, यू विल फॉलो दैट पर्टिकुलर कमिटी, एंड वो कमिटी तुमको प्रिपेयर कराएगा कॉन्टेंट के लिए. अब वो तुमको कॉन्टेंट के लिए प्रिपेयर करा रहा है, बट आर यू प्रिपेयर्ड फॉर प्लेसमेंट्स? आर यू गुड इनफ? क्या तुम्हारा स्किल सेट उनके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो देखने के लिए प्लेसमेंट कमिटी ऑल्सो हैज़ टू एंटर द स्टूडेंट्स का ग्रुप बेसिकली इन अ वे. तो जनरली क्या होता है, टू कीप द प्रोसेस एज फेयर एज इज पॉसिबल, द सीनियर्स, आई वॉज इन द प्लेसमेंट कमिटी इन माई सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड से जो भी तभी था मैं. सो आई बेसिकली हैंडल द इंटर्नशिप्स फॉर द जूनियर बैच. सिमिलरली द जूनियर बैच विल हैंडल आवर फाइनल प्लेसमेंट्स. वैसे चलता रहता है जनरली, क्योंकि अपने ही बैच को अगर अफेक्ट करोगे तो यू ऑल्सो अफेक्ट यूर प्लेसमेंट्स. तो टिपिकली वो अवॉइड करने के लिए द बैच दैट वी हैव विल नॉट हैंडल देयर ओन प्लेसमेंट्स. वो एक फेल सेफ होता है एक चीज़. अब लेट्स से वो एक है. नाउ आई ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट आई एम नॉट बीइंग पार्शियल. तो मैंने कोई जूनियर से बात ही नहीं की 6 months. ओनली आई टुक इंटरव्यूज ऑफ दिस पीपल. थोड़ा उनको स्ट्रेस में डालते हैं, वो है मतलब इट हैज़ टू बी डन, राइट? बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस बिटवीन अ कमिटी एंड अ कोर कमिटी एंड अ प्लेसमेंट कमिटी, लेट्स से. नहीं तो फिर लोग थोड़ा कैजुअल हो सकते हैं. जस्ट टू एंश्योर दैट पीपल आर नॉट कैजुअल. आई एम नॉट सेइंग दैट यार यू रैक पीपल एंड डू वट एवर यू कैन, वो सब नहीं करना है. बट मतलब हाँ, एंश्योर दैट पीपल आर सीरियस एंड आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोसेस. तो ये पूरा काम होता है प्लेसमेंट कमिटी का इन अ वे. नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली, इट्स एज गुड एज अ कॉर्पोरेट जॉब. बिकॉज तुम अपना कॉलेज भी हैंडल कर रहे हो साथ में. ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अकेड्स कुछ भी आएंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है. यू आर हैंडलिंग योर कॉलेज, यू आर परसुइंग कंपनीज, यू आर गोइंग एंड विजिटिंग दिस कंपनीज, यू आर नेगोशिएटिंग विद देम. कौन से डे पे आना चाहिए, किस कंपनी के साथ आना चाहिए, कितने लोगों को तुम लेके जा रहे हो, ये सारा नेगोशिएशन इन्वॉल्व है. You are preparing the candidates as well. So you are managing an entire event at the end of the day. And this is the core event at any B school placements. तो ये काम होता है. अब ये काम अगर कोई करे तो डेफिनेटली उनका कैंडिडेचर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है. बिकॉज दैट वन लाइन दैट सेज यू आर अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर और यू आर अ मेंबर ऑफ द प्लेसमेंट कमिटी, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर थिंग दैट आई मेंशन टिल नाउ. नाउ प्लेसमेंट कमिटी में जाने के पीछे लोगों के दो ब्रॉड आई थिंक रीजन्स होते हैं. One is self-development, which was my reason. I was very clear that मुझे मुंबई में कॉलेज नहीं लेना है. Because people, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग मुझे जानते थे यहाँ पे. मुझे नहीं चाहिए वो environment. I want to get into an environment जहाँ पे nobody knows me. Because then I can mess up. मैं कुछ भी करूँगा, लोग वापस आके मुझे बोलेंगे नहीं, अरे तो पहले वैसा था, अभी तो ऐसा बन गया. Nobody is going to tell me that. So that's why I had decided कि भाई इधर नहीं करना है, ठीक है. I went there for self-development. I was a very shy individual. मतलब मेरा CAT का प्रोसेस भी बहुत ऊपर नीचे ही रहा था honestly. बट आई वॉन्टेड टू गो एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ. आई वॉन्टेड टू बी लाइक भाई मेरे को CV पे अच्छे अच्छे पॉइंट्स चाहिए. आई हैव टू गो एंड मेक श्योर दैट आई हैव हैड द एंटायर एक्सपीरियंस दैट आई वॉन्ट टू फ्रॉम माई MBA बिफोर आई गो एंड ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें प्लेसमेंट टीम भी फीचर करता था, राइट. सो माई थिंक वॉज सेल्फ डेवलपमेंट प्लेसमेंट टीम में जाने के पीछे. और मेरे कमेटी के अंदर जो भी लोग थे सबका मोस्टली वही एजेंडा था. किसी का एजेंडा वो दूसरा वाला नहीं था. द अदर एजेंडा इज पावर. तुम प्लेसमेंट टीम में आते हो, यू आर पावरफुल. इट्स लाइक पॉलिटिक्स. देर आर सम पीपल हु आर देयर फॉर पावर कि भाई मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे वो लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए. पीपल शुड स्टैंड अप एंड रिस्पेक्ट मी, दे शुड इन्वाइट मी टू फंक्शंस. वो मेरा ऑब्जेक्टिव है. देन देर आर पॉलिटिशियंस हु जेन्युइनली वांट टू डू समथिंग गुड फॉर दी कम्युनिटी. वो शायद माइनॉरिटी में हो सकते हैं, बट देयर पीपल एग्जिस्ट, बोथ काइंड्स ऑफ पीपल एग्जिस्ट. तो अगर पावर के लिए जा रहे हो, देन ऑल दी स्टोरीज दैट यू हैव हर्ड आर ट्रू. आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत स्टोरीज होते हैं, झूठ होते हैं, ऑल दोस थिंग्स. मेनी ऑफ द एक्यूजेशंस आर ट्रू कि उसने अपने दोस्त को पुश कर दिया, या फिर कोई कंपनी में अपना खुद का सेटिंग लगा दिया एंड बाकी फिर मतलब बैच का प्लेसमेंट हो ना हो डजेंट मैटर. So all these stories happen and they are true across a lot of campuses. It mostly depends on the team. It depends on the year.
तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक कॉलेज के अंदर हर एक साल करप्ट लोग ही प्लेस कॉम में जाता है, ऐसा नहीं है. सम टीम्स माइट बी करप्ट, सम माइट नॉट बी करप्ट, हो सकता है, बट ये होता है. And of course the other thing is, if you are there to do well for yourself and the victory in your mind, मतलब मेरे लिए जीत ये थी that if I am able to place all the juniors in good companies without having to push anyone or कुछ करना है, being very fair on the floors, I think that counts as a victory to me. तो वो पर्सनल चीज़ हो जाती है. बट वॉट आर सेइंग इज राइट, होता है प्लेसमेंट टीम के अंदर पॉलिटिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. हैविंग सेड दैट, इफ यू नो और इफ यू फर्मली बिलीव कि प्लेसमेंट टीम में पॉलिटिक्स होता है और उनके पास पावर होता है, एंड यू ऑल्सो डिजायर दैट काइंड ऑफ पावर, व्हाई नॉट गेट इन टू द प्लेसमेंट कमिटी एंड ट्राई टू करेक्ट थिंग्स, राइट. जैसे भी बोलते थे ना, मतलब देयर वाज अ मूवी, ओल्ड मूवी, रंग दे बसंती वाज देयर. तो देयर इज अ डायलॉग इन दैट, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है. तो यू गेट इन टू द सिस्टम एंड यू क्लीन द सिस्टम अप rather than sitting outside and criticizing, right? So जाओ प्लेसमेंट टीम के अंदर, stand for the election that is there, get your votes, get into the system and clean it up. वो किसी को नहीं करना होता. So that is a different story. But हाँ, मतलब what you're saying is right, होता है. But if you feel so strongly about it, get into the team, try changing things. But हाँ, मतलब the placement team has power and has a lot of value on your CV because of the kind of work that they are supposed to do, expected to do. So yeah, that is about the place comms. Apart from that, sir, what exactly can be done in order to get the highest placement or to be at the top 10% of the CVs in your batch? So see, that you just need to have good intent, right? MBA किसके लिए कर रहे हो? For a lot of people, if you ask them what is your goal, they will say IIM Ahmedabad जाना है. The day you get into IIM Ahmedabad, first day at IIM Ahmedabad, you are like मैं अभी करूँ क्या? चलो IIM Ahmedabad में आना मेरा सपना था, मैं आ गया, but इसके आगे क्या? So that is where the problem lies. Your goals have to be bigger than that, first thing. Second thing is, what exactly do you do at a B school, right? You have to make sure that you are making the most of every moment that you are spending at a B school. And यहाँ पे मतलब residential B schools are a bonus because you are in no hurry to go home. नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मुंबई में हो let's say, you are going to a college, तुम्हारा 3 बजे खत्म हो जाता है कॉलेज. Your entire focus is on catching the next train or whatever mode of transport and reaching home at the earliest. क्योंकि अगर 5 के बाद निकल जाओगे तो भीड़ हो जाएगी. So you can't let these thoughts bother you, right? So residential campus मेरे लिए definitely एक बड़ा win होता है, to be honest. Even if you're a day scholar, make sure that you are spending as much time on campus as is possible. आप टाइम तो स्पेंड कर रहे हो कैंपस के अंदर. नाउ MBA हैपन्स एट दैट जंक्चर इन योर लाइफ जहाँ पे यू नो व्हाट यू हैव टू डू और यू आर सपोज टू नो व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ. कोई भी फैकल्टी आके तुमको नहीं सिखा सकता, मार्केटिंग नहीं सिखा सकता कोई फैकल्टी, कितना भी अच्छा फैकल्टी क्यों ना हो, ठीक है. दे कैन पीक योर इंटरेस्ट, हाँ तुमको इंटरेस्टेड बना सकते हैं मार्केटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, बट उसके आगे की जो जर्नी ट्रैवल करनी है वो तुमको ही करनी है. यू हैव टू फिगर आउट विच कंपनीज की, कौन से कंपनीज की क्या स्टोरीज थी, केस स्टडीज थी, कौन से ब्रांड में क्या हुआ था, एंड ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू सिट एंड फिगर आउट ऑन योर ओन. If you are passionate about marketing, you will do it. If you are not passionate, you will not do it. You can't wait for a faculty to come and teach you marketing. नहीं हो सकता at this point in time. So B school gives you those 2 years जहाँ पे you are free to do whatever you want to do. College के exams वगैरह ठीक है वो चलते हैं, वो manage हो जाता है उसमें. I don't think that's a big problem. But you are free to do whatever you want to do. Now if you know what you want to do, you will do better in life. ठीक है. तो जनरली फर्स्ट 15-20 डेज के इंडक्शन में समझ में आ जाता है व्हाट एक्साइट्स यू, व्हाट डज नॉट एक्साइट यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसके बाद यू हैव टू पार्टिसिपेट इन एज मेनी थिंग्स एज इज पॉसिबल. इज माई टेक ऑन दिस. जाने से पहले अगर एक लिस्ट बना लो कि मुझे ये चीज़ें करनी है एंड देन कीप ऑन चेकिंग ऑफ आइटम्स फ्रॉम दैट लिस्ट, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू थिंग्स. तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे. फिगर आउट कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स तुम्हारे कॉलेज में होने वाले हैं या हो सकते हैं या हुए हैं, ऑल दोज थिंग्स, एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दोज कॉम्पिटिशन्स. बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का एक PPI एंगल होता है. Whether or not you take that placement up is up to you, but a PPI on your CV is a very strong thing that you have. Again, if you get an internship on campus, try to get a pre-placement interview or a pre-placement offer because that again adds a lot of value to your CV. It's a validation कि भाई ये इंसान अच्छा काम कर लेता है, हम इसको full time offer देने के लिए ready हैं. Now I am negotiating with another company कि देखो ये मुझे देने के लिए ready है, तुमको देना है तो दे दो टाइप्स. That is one thing. लाइव प्रोजेक्ट्स, कुछ अगर अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, गो फॉर दोस. रिसर्च पेपर्स, कोई फैकल्टी कुछ कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर देयर. कमिटीज, आई कांट ओवर एम्फोसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कमिटीज इन एन इंस्टीट्यूट, राइट. स्पेशली अमंग द टॉप टियर कॉलेजेस, भाई कमिटीज बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग करते हैं फैकल्टी के साथ
राइट. सो कंटेंट बिल्ड करना, कंटेम्प्रेरी कंटेंट होना, ये सारी चीज़ें कम फ्रॉम द कमिटीज़. So if you are being a part of a core committee, nothing like it. So make sure that you are making use of each and every moment that you are getting there, right? And इसके साथ में एक चीज़ आती है personality development. To be very honest, I didn't mind going and making a fool of myself in front of people, because as I said, right, कोई मुझे जानता नहीं था. Nobody knew what kind of a person I was. I was popular back then. थोड़ा मतलब लोग जानते थे कि I exist, but they didn't know what kind of an individual I am. So that gave me the license कि तुम जाओ, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो, गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ 200 पीपल, स्क्रीम एट देम. लेट्स से स्क्रीम करते टाइम पे तुम्हारी आवाज़ फट भी जाएगी ना, लोग तुम पे हंस देंगे, बट इट्स ओके, बिकॉज टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू सी दिस पीपल अगेन. सो आई वॉज ऑलवेज इन दैट थिंग कि यू हैव टू गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, क्योंकि ये अभी अगर नहीं करोगे, लाइफ विल नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन थिंग्स दैट यू बिलीव आर योर शॉर्ट कमिंग्स. यू विल ऑलवेज बी स्टक विद दैट पर्सनैलिटी थ्रू आउट योर लाइफ. सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर पर्सनैलिटी, ये तुम्हारे पास टाइम है. So participate is the one word in which I will describe the journey at an MBA. अगर फिर वो top 10% best company on campus, वो सब secondary है. For me process is very important. Process अगर ठीक से कर लोगे, outcome तुम्हारे लिए तुमको मिल जाएगा. सर वो 3 Idiots वाला डायलॉग ही हो गया एक तरीके से. Yes. So very, I really resonate with this one. But यही चीज़ अगर हम थोड़ा पीछे extrapolate करें, what should one be doing before their MBA begins? Let's say before 2 months before their MBA begins, क्या करना चाहिए sir, in order to boost your profile or get the best placement? So see, honestly said, right, जैसे कॉलेज के अंदर जाओगे ना, इतना ज़्यादा स्टिमुलेशन होगा माइंड का that you will get burnt out if you are already working hard. सो फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट कि भाई तुम्हारा अगर कन्वर्ट हो जाता है कोई चीज़, जस्ट रिलैक्स, 2 महीना आराम करो, एन्जॉय योर सेल्फ, बी इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड फिजिकली मेंटली. जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट अ कॉलेज डजंट मीन दैट यू कीप ऑन ईटिंग समथिंग एंड डू समथिंग टू योर GI सिस्टम. वो सब मत करना. बी केयरफुल वट एवर यू आर डूइंग, बट मेंटली एंड फिजिकली यू शुड बी रिलैक्सड. बिकॉज जैसे ही यू गेट इन टू द कॉलेज, स्पेशली इफ इट्स अ टॉप टियर कॉलेज, इट्स गोइंग टू बी इनसेन. मतलब इट्स गोइंग टू बी इनसेन. एंड मेरा पॉइंट ये है कि अगर वो इनसेन नहीं है ना, देन यू आर इन द रॉन्ग इंस्टीट्यूट, राइट. इफ यू आर नॉट, इफ यू आर गेटिंग टू स्लीप फॉर मोर देन 6-7 hours a day, आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग कॉलेज, और यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट. दैट इज वॉट आई थिंक. तो उसके लिए थोड़ा बिल्डअप करना है. हैविंग सेड दैट, some things you can do. There are some core things that you need to do, which is like arranging certificates, for example. सो कॉलेजेस जनरली जून जुलाई टाइप स्टार्ट हो जाएंगे. तुम्हारे प्लेसमेंट कमेटी के साथ पहला इंटरेक्शन भी उसी टाइम पे होगा, जुलाई काइंड ऑफ अ थिंग. यू विल हैव योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद द प्लेसकॉम. योर CV वेरिफिकेशन विल स्टार्ट समवेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर. उस टाइम पे तुम्हारा CV वेरीफाई होना शुरू होता है. सो वट एवर थिंग्स यू हैव डन, इफ यू डू नॉट हैव सर्टिफिकेट्स दैट स्टेट वर्बटिम whatever you are planning to write in your CV, तो कहीं पे अगर लिखा है led a team of 10 people is what you are planning to write on your CV, your certificate should say it verbatim, led a team of 10 people. ऐसा नहीं है कि was a part of a team of 10 people, नहीं, then you can't write it. सो ये सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठा कर लो, बिकॉज देन वंस यू गेट इन टू द बी स्कूल यू माइट नॉट गेट चांस टू गो एंड विजिट पीपल और कॉल देम अप एंड आस्क देम कि अरे मुझे ये चाहिए करके. तो ये वाला काम कर लो. गेट ऑल योर सर्टिफिकेट्स, ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस बिफोर यू गेट इन टू द बी स्कूल. एंड द सेकेंडरी एस्पेक्ट इज इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट. तो अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं लेट्स से एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट अ बैलेंस शीट इज, तो जाते ही पहले दिन ही तुमको बैलेंस शीट शुरू हो जाएगा. अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट डे जनरली होता है. And if you are like me, जिसका कुछ exposure नहीं था, and I nicely dozed off, happily I dozed off in my first class at financial accounting, 9 o'clock का class, मैं सो गया मस्त एकदम. ठीक है. I never developed an interest in finance till about 5-6 years back. ठीक है. तो उसके बाद I realized that finance is such a beautiful sector, right? अगर देखते हो तो कितना सारा चीज़ है to learn and everything is so logical and so on and so forth. But the first day I slept at college, I couldn't again gather interest at all finance में. तो थोड़ा बहुत फाइनेंस पढ़ लो सो दैट यू डोंट मीट द सेम फेट दैट आई डिड. बैलेंस शीट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, ये वाला चीज़ कर लो. माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये समझ लो. ट्राई टू लुक एट द कंपनीज दैट कम ऑन कैंपस, उनके ब्रांड्स क्या क्या हैं, थोड़ी स्टोरीज वगैरह पढ़ना शुरू करो. दोज थिंग्स यू कैन डू. आई थिंक उतना अगर कर लोगे तो यू शुड बी फाइन. फिर वंस यू गेट इन टू द कॉलेज यू आर सॉर्टेड. एंड बहुत सारे कॉलेजेस का एक प्री इंडक्शन भी होता है विच जनरली हैपन्स ऑनलाइन, which is a month kind of before the actual college starts. तो वहाँ पे सारे committees वगैरह तुमको material भेजना शुरू कर देते हैं. So participate in those activities. Don't stay home and say कि मैं ये सब online sessions attend नहीं करूँगा या कुछ quiz हो रहा है तो मैं attend नहीं करूँगा. They are optional of course, but make sure you are participating from day one. Because ये सारा धीरे धीरे build up होता जाएगा. And because the placement comes very quickly. मतलब before you realize you are sitting for a process. उतना समझ में ही नहीं आता कि कब placements आया है.
So be mentally prepared for that. These are the things that I would recommend you to do before you join. Sir, so I've heard from everywhere that B school is very gonna be very busy. You wouldn't get time to sleep. But sir, होता क्या है first, let's say, एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में? So again, I don't want to spoil the experience, but I know यार recently there was a big controversy that happened कि यार मतलब induction के time पे a lot of people started complaining कि अरे हमारे साथ मतलब काफ़ी वो है. I don't know exactly क्या होता है and all those things, but हाँ मतलब there are complaints almost every year that happen, right? But I will tell you what makes it difficult. You get into a B school, ठीक है. अभी now you are used to only one thing that is happening in your life. कॉलेज में जो होता है, सुबह 9 बजे कॉलेज में जाते हो, लेट्स से 3 बजे कॉलेज खत्म होता है, 3-4 बजे यू कम बैक होम एंड सॉर्टेड. 4 बजे के बाद जनरली कॉलेजेस में कुछ होता नहीं है, टिपिकली ग्रेजुएशन के टाइम पे, लेट्स मोस्टली नहीं होता. बी स्कूल में जाते ही शाम को 4 बजे तुम्हारा कॉलेज खत्म होता है, लेट्स से 5 बजे मार्केटिंग टीम विल कम एंड विल टेल यू कि आज तुमको ये असाइनमेंट करना है. एंड ऑनेस्टली नोबडी क्वेश्चंस कि क्यों करना है मुझे असाइनमेंट, मैं नहीं करूँगा, तुमको जो करना है कर लो, बिकॉज दे नो दैट इट इज गोइंग टू एड अप टू देयर कैंडिडेचर एट द एंड ऑफ द डे. तो लोग करते भी हैं. तो ये 4 बजे शुरू होता है, फिर 6 बजे बोलते हैं नहीं अभी ना कोई तो एक आने वाला है तुमसे इंटरेक्ट करने के लिए, तो एक गेस्ट लेक्चर हो रहा है. तो लाइक यार गेस्ट लेक्चर तो बैठना पड़ेगा, समवन फ्रॉम HUL इज कमिंग एंड टॉकिंग, तो आई हैव टू सिट एंड लिसन टू इट एंड अंडरस्टैंड कि भाई HUL क्या है, बिकॉज इंटरव्यू में क्या पता वो एक इनसाइट मुझे काम आ जाए करके, आई हैड लिसन टू दिस पर्सन से दिस बिकॉज ऑफ विच आई एम डूइंग दिस करके. ब्रिलियंट. तो वो करना चाहिए. फिर तुमको पता चलता है कि यार ये मार्केटिंग टीम ने जो तुम्हारे साथ किया था 5 to 7 जो भी सेशन किया था, बोला गया है कि भाई अभी तुमको एक एनालिसिस करना है ऑफ दिस ब्रांड कॉल्ड प्यूरिट, लेट्स से, विच वॉज द ब्रांड दैट आई हैड गॉट ड्यूरिंग माई टाइम. तो प्यूरिट के ऊपर एक स्टोरी बनाओ पूरा कि क्या था ब्रांड, क्या उसका सेगमेंटेशन क्या है, टारगेटिंग क्या है, पोजिशनिंग क्या है, सब बनाओ उसके ऊपर. द डेडलाइन इज 4 o'clock in the morning tomorrow. नाउ यार लाइक अच्छा 4 बजे के पहले भेजना है मुझे वो. अगर मैं नहीं भेजूंगा देयर इज नो, अगर मैं नहीं भेजूंगा तो क्या होगा, क्वेश्चन ही कोई पूछता नहीं है, पूछना भी नहीं चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. एंड दैट्स हाउ योर फर्स्ट डे स्टार्ट्स एंड देन दैट गोज ऑन फॉर लाइक अ गुड, मेरे हिसाब से समर इंटर्नशिप तक तो ये इंटेंसिटी बनी रहती है. पीपल गेट यूज टू इट धीरे धीरे, बट द फर्स्ट वीक ऑन कैंपस यू सडनली अगर मैं आराम से घर पे बैठा था, इट्स लाइक बीइंग बॉर्न, राइट. जनरली पीपल से कह रहे मैं आई वॉज वेरी नाइस एंड हैप्पी एंड कोजी, वो खाना मिलता रहता था, दिन भर चलते रहता था करके. सडनली आई एंटर द वर्ल्ड एंड समवन इज स्लैपिंग मी एंड मेकिंग मी ब्रीथ एंड ऑल दोस थिंग्स. इट्स लाइक दैट, राइट, द सेम एक्सपीरियंस. सो इट्स काइंड ऑफ अ रीबर्थ इन अ वे. MBA में जाते हो तो you have to be mentally prepared. That is the only thing. I know people, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे बी स्कूल में जो बहुत शॉक हो गए थे देख के कि अरे ये क्या हो गया, अचानक से कहाँ से इतना प्रेशर आ गया करके. आई न्यू कि ऐसा होने वाला है करके. आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर वर्स, ठीक है. तो मैं हमेशा आई एम ऑलवेज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स. अगर वो नहीं होता तो आई एम फाइन, वो है. तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड. एट द सेम टाइम आई विल ऑफ कोर्स यार डोंट टॉलरेट बुलशिट, इज माई थिंग एज वेल. कोई आगे तुमको ज़बरदस्ती कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वोकल अबाउट इट एंड यू हैव टू स्पीक आउट अगेंस्ट इट. बट टिपिकली मतलब बी काम, मेक श्योर दैट you get into that B school वाला thing nicely and it's going to be hectic. मतलब again as I said, right, अगर hectic नहीं है it means that nobody is working hard. तो even the seniors are working hard to give you that experience. मतलब वो बैठ के चेक करेंगे तुम्हारा पूरा assignment, तो they are also working hard so that you getting used to this rigor. तो अगर नहीं वो लोग काम कर रहे तो फिर you are in big trouble because फिर you are to fend for yourself placement के टाइम पे, जो तुम्हारे लिए impossible हो जाएगा. तो पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन, एज आई सेड. एंड बहुत इंटेंस अगर कुछ हो रहा है, अगर कुछ बहुत ही अननेचुरल सी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है, देन स्पीक आउट अगेंस्ट इट. बट मोस्टली नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. So sir, looking back at your CAT journey, what is the one thing that you would tell a student not to do? Okay, so see, my CAT journey was fairly uneventful to be honest. I was doing really well in the mocks and everything. One thing that I genuinely did not work on, या should have worked on, या फिर I'll tell my younger self is, yeah, don't be shy when it comes to specifically during interviews and stuff, right? तो हमारे में ये होता है यार, see, CAT का preparatory journey, you do it at an individual level, it's fine. You can do it. मतलब बैठ के बुक पढ़ना है, करना है, ऑनलाइन देख लो, कुछ टेस्ट दे दो, मॉक्स दे दो, you are sorted, right? So it's an individual affair at the end of the day. But जैसे you get into the GDPI वाला round, suddenly it becomes about perspectives. It becomes how you present yourself, right? Communication skills, क्योंकि वो दो तरफ से चलता है. वहाँ पे you have to be open to feedback. I was an extremely shy individual. मतलब I don't know, I'm not an introvert per se, technically मतलब नहीं है. But then again I was very shy कि यार मैं अपना कैंडिडेचर जाके बाकी लोगों को क्यों दिखाऊँ करके. एट द सेम टाइम मेरा ईगो भी बहुत बड़ा था उस टाइम पे.
मैं बोलता था यार आई एम कमिंग फ्रॉम अ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई एम अ डॉक्टर, और डॉक्टर्स की तो कमी वैसे भी है एमबीए के अंदर, तो नॉन इंजीनियर्स को तो एडवांटेज मिलता है। मेरे स्कोर्स भी बहुत अच्छे हैं, आई यूज्ड टू स्कोर मतलब हेवी 99 99.9 यूज्ड टू बी माय परसेंटाइल एंड स्टफ। तो यार इतना अच्छा परसेंटाइल है, इतना अच्छा प्रोफाइल है, 2 आउट ऑफ 3 थिंग्स आर डन, इंटरव्यू तो ऐसा वैसा हो तो भी यही लेंगे। इट वॉज अ बिग मिस्टेक ऑन माई पार्ट टू एक्सपेक्ट दैट। ठीक है यार, वो तुमको कॉल बुला रहे हैं, मतलब तुमको बुला रहे हैं इंटरव्यू रूम के अंदर, वो तुम्हारे पे ऐसे एहसान नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग यू अ फेवर बाय कॉलिंग यू फॉर एन इंटरव्यू, नो। वंस यू गो इन टू द इंटरव्यू रूम एवरीबडी इज एट द सेम लेवल। आई फर्मली बिलीव दैट। मैं अभी भी मतलब स्टूडेंट्स को वही बोलता हूँ कि यार एक बार तुम इंटरव्यू रूम में चले गए ना, योर परसेंटाइल टेक्स अ बैक सीट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ देयर कुड बी सम कोरिलेशन दैट पीपल विथ हायर परसेंटाइल्स वुड वांट टू कन्वर्ट दैट कॉल मोर, वो हो सकता है, बट ओवरऑल इट डजंट मैटर व्हाट योर परसेंटाइल इज, एंड आई लर्नड इट द हार्ड वे। So I would have typically wanted to go back and talk to a few people, discuss my answers with them कि भाई कहीं पे तुमको लॉजिकल कुछ होल्स दिख रहे हैं क्या इसके अंदर, इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या कर सकते हो, इफ यू वेर टू आस्क मी, जो भी है, मतलब अगर एक रैंडम क्वेश्चन मेरे को पूछना तो क्या क्वेश्चन पूछोगे। सो ऑल दोज थिंग्स आई डिड इट ड्यूरिंग माई सेकंड अटेम्प्ट। आई वेंट टू एवरीबडी दैट आई न्यू एंड आस्क्ड देम कि भाई मेरे को क्वेश्चन पूछो, ask me why MBA, ask me why should I not continue with medicine, ask me what my long term goals were, short term goals were, and वैसे कर करके वो शार्पन किया मैंने इंटरव्यू स्किल्स अपना। बट या दैट वाज वन थिंग दैट आई वुड रियली वांट टू टेल पीपल एज वेल, एंड ऑफ कोर्स टू माई सेल्फ एज वेल, कि यार मतलब बहुत कैजुअली मत देना चीज़ों को, बिकॉज यू नेवर नो, वन थिंग डजंट गो इन योर फेवर, योर एंटायर सीजन इज गॉन। तो वो डोंट लेट दैट हैपन, फोकस ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड लेट गो ऑफ दैट शाइनेस। That is definitely not going to help you. I'm not saying extrovert जाके पार्टी करना शुरू कर दो, वो सब नहीं करना है, but don't be hesitant while asking someone for help. वो मत, don't let that come in the way of your success. Sir, but that was post CAT journey in a way, interview वाला हो गया. But what if in the preparatory phase of the CAT, anything that you would recommend someone to do especially or to not do, let's say? So see, one thing again that I have seen through experience is a lot of people have a favorite section. एंड वो उसी में लगे रहते हैं, वो कुछ आगे सोचते ही नहीं है। इनफैक्ट दैट इज़ माई ग्राइप ऑन दी ग्रुप्स दैट आई रन एज वेल, सो आई रन एन ओपन टेलीग्राम चैनल एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ वहाँ पे सब क्वांट के क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, एंड नो बडी विल आस्क वर्बल क्वेश्चन एट ऑल, एंड देन दे लाइक यार वर्बल में मार्क्स नहीं बन रहे हैं। दैट इज बिकॉज यू हैव बीन ट्राइंग टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन विदाउट चेंजिंग एनीथिंग फंडामेंटली। तो जब तक तुमको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, यू विल नेवर बी एबल टू अडेप्ट दैट पर्सपेक्टिव, adapt to that perspective, and you will never be able to improve your score. तो वो होगा। तो वन थिंग इज मतलब हाँ, बैलेंस्ड रखो सेक्शंस, दैट इज वन थिंग दैट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग। दे विल ओनली कीप ऑन शार्पनिंग देयर फेवरेट सेक्शन, इतना ज़्यादा दैट वो लोग क्वांट के अंदर बैठ के ऑयलर्स, फॉर्मास, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम, जोसेफस पजल, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है, आई लव ऑल दिस थिंग्स बाय द वे, व्हाटएवर आई मेंशन राइट नाउ, 5 थिंग्स दैट आई मेंशन, दोस आर माय एब्सोल्यूट फेवरेट टॉपिक्स क्वांट के अंदर, बट नॉट फॉर कैट। यार वो कैट में ज़रूरत नहीं है वो सबका, आई जस्ट लर्न देम बिकॉज दे साउंडेड इंटरेस्टिंग. But a lot of people prepare seriously, they feel bad if they're not able to solve 43 raised to 43 raised to 43 mod 32 kind of a question. उनको बहुत ख़राब लगता है ये कैसे नहीं हुआ करके. So that is one thing you have to get out of. You have to prepare for the test. You don't have to prepare for quant. You have to prepare for the test. एक चीज़ जनरली I tell my students, it's again an old movie, shows my age maybe, Lagan. I'm sure everybody would have heard of it. But उसमें बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग है, राइट. सो देयर इज समवन हु सेज कि भाई इसको नहीं खेलना चाहिए. एवरीबडी सेइंग दैट कचरा शुड नॉट प्ले इन अ वे. दिस गाय गोस एंड सेज दैट एक बात याद दिलाई दूँ सबको, ये कोई खेल नहीं है जो मैं किसी के मौज या अपने मनोरंजन के लिए खेल रहा हूँ. ये एक लड़ाई है जो हमका जीतनी है. एज सिंपल एज दैट, right? So you are fighting a battle there. You are not trying to have fun. You have to have fun, agree, but at the end of the day you have to do what the test requires of you. So don't lose focus from that. Be sure that you are fair to all the sections that are there. Post process के लिए भी थोड़ा सा prepared रहो, and I think you should be fine. So if someone has failed CAT twice, what would you say to them? So see, it depends on why you have failed CAT twice in the first place, right? There is this saying that a lot of people follow. It's called insanity is basically doing the same things again and again without changing anything. So that might be insanity for a lot of people. तो 2 बार अगर दिया है attempt, let's say, and let's say for example you had prepared
पूरा का पूरा मतलब अपना पूरा जोश में प्रिपेयर किया है, यू आर जॉइंड अ गुड इंस्टीट्यूट, यू आर वेरी रेगुलर देयर, लेट्स से यू ऑल्सो प्रिपेयर्ड हार्ड विदाउट एनी ब्रेक्स, यू टुक ऑल द मॉक्स दैट यू कुड हैव, सारा चीज़ किया है ठीक से, बट फिर भी ना वो फल नहीं मिल रहा, मुझे तो क्या करना चाहिए? See, not everybody will be good at everything. Like I mentioned earlier, right? I can't decide to run 100 meters in sub 10 seconds or sub 11 seconds. नहीं कर सकता मैं, बहुत difficult है मेरे लिए, improbable है. So not everybody will be meant to do that. I have typically believed that there are two kinds of people, let's say. ये बहुत लोगों के साथ होता है. एग्जाम देने बैठे हो, पीछे इन्विजिलेटर आके खड़ा रह जाता है, right? And now you don't know what to do. Should I write and काइंड ऑफ फेस और सब्जेक्ट माई सेल्फ टू रिडिक्यूल कि वो तो देख के हंस रहे होंगे यार ये क्या लिख रहा है, बकवास आंसर लिखते जा रहे हैं, कुछ नहीं आता करके, तो लोग शर्मा जाते हैं, थोड़े लोग लिखते ही नहीं है तो छुपा के लिखना शुरू करते हैं. एंड देन देर आर सम पीपल हु आर लाइक अच्छा ऑडियंस मिल गया अभी दिखाते हैं, राइट? आई एम जनरली द सेकंड काइंड. इफ एन इन्विजिलेटर इज स्टैंडिंग इन बिहाइंड मी, आई वुड मे बी राइट फास्टर देन आई कुड अदरवाइज. वो होता है, मेरे को ऑडियंस चाहिए. अगर ऑडियंस नहीं है, आई विल जनरली नॉट प्ले दैट काइंड ऑफ थिंग. वो लाइव मॉक सॉल्विंग वगैरह में भी वो सब चीज़ें आ जाती है, राइट? So वो सब चीज़ें हैं. Now if you have done everything and you are still not able to do it, maybe you are the first kind who is not a very good test taker, doesn't make you a bad manager. So at some point in time you have to cut it off. मतलब यार हो गया, यही है, मेरे को बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, मेरे को ये लेना चाहिए. If it makes sense to you, ले लो. अगर नहीं सेंस बन रहा, work for 3, 4, 5 years, get into an executive MBA, बहुत सारे options available है. Don't fall in love with the test. Right? Don't waste your 20s running behind tests. मतलब I have, again, honestly, I know this might be थोड़ा controversial opinion, but I didn't agree with the premise of 12th fail completely. Right? मतलब glorify करते हैं struggle को, to be very honest. But वो देख के अगर लोग 5 साल 6 साल बैठ के prepare कर रहे हैं without having a job in hand, आगे जाके they don't have anything to show for their career. Now people who make it great job, they do it and they lead a good life, I'm sure. बट जिनका नहीं होता ना, तो उनका मतलब देयर इज अ स्कार दैट दे हैव थ्रू आउट देयर लाइफ्स. सो आई वुड नॉट वांट एनीवन टू कीप ऑन ट्राइंग फॉर अ टेस्ट, स्पेशली व्हेन इट इज क्लियर दैट कुछ इसमें एक्स्ट्रा या अलग नहीं हो सकता. ऑन द अदर हैंड, इफ समवन हैज टेकन कैट ट्वाइस, लेट्स से, अ फेल्ड कैट इज अ सब्जेक्टिव टर्म, देयर इज नो पासिंग और फेलिंग कैट, जो हम लोग भी बोलते हैं, राइट? यू इधर गेट अ कॉलेज ऑफ योर चॉइस और इफ योर लाइकिंग, और यू डोंट गेट अ कॉलेज ऑफ योर लाइकिंग, दैट्स इट. अगर 2 साल ट्राई किया है, अगर नहीं हो रहा है, एंड इफ यू हैव नॉट बीन रेगुलर इन योर स्टडीज, then maybe you can take another attempt. But make sure कि भाई यही attempt है जहाँ पे you are doing whatever you can, no breaks in your preparation, you are taking all the mocks that you can, you are going through all the content that you have, सारा चीज़ कर रहे हो without losing focus, and that is basically your last attempt. उसके बाद और नहीं करेंगे. So that is what I would suggest. Just understand why is it that you have that sense of failure in the first place. If you have done everything, take the best option you have, या फिर maybe defer your MBA to a later point in time. And if you have not done well, then maybe you can give yourself one attempt, but then promise yourself कि यार ये साल के बाद 2025 is going to be my last CAT, let's say. उसके बाद I'm not trying for CAT at all. अगर मेरे से नहीं होता तो this is the last test I'm taking in my life. और फिर मतलब then kind of let go of that dream. Maybe you can do it a bit later in life, like I said, executive MBA or something. But फिर वो उसके पीछे साल भर साल नहीं भागना है. And try to get a job. If you have taken a gap, yeah, please try to get a job. I'm not saying it because CV पे gap होता है and all those things, because that will follow you throughout your life. Interview में पूछेंगे ही पूछेंगे. Why should we select you over someone else who has prepared and worked simultaneously? It's a very difficult question to answer. Rhetorical question ही है, नहीं आंसर कर सकते इसको. बट आगे जाके भी वो CV पे दिखाई देगा कि यार यू आर तो 2022 का पास आउट, तो 2025 तक क्या किया? No good answers to those questions. So take a job, do something alongside your CAT preparation is what I would suggest, especially if you have a gap. And अगर gap नहीं है तो please gap मत लो. I don't think it's worth it. Understood, sir. And one thing that I've faced a lot of times, I have a lot of friends from the Hindi medium background. So sir, what do you think? Can someone with a Hindi medium background get a 99 percentile? Of course, ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि if you are from a Hindi medium background तो नहीं आएगा करके. In fact, I know quite a few people who have worked on their language skills in general. So see, CAT 99 percentile हिंदी ये सब बहुत ही छोटी चीज़ें हैं. If someone genuinely believes कि उनको एक लैंग्वेज पे मास्टरी हासिल करना है, let's say that is what they want to do properly in their life, right? Then there are ways in which you can do it. And I would strongly suggest anybody who wants to be a part of the corporate ना, यार इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स थोड़ा, स्पीकिंग राइटिंग स्किल्स थोड़ा बेटर करो, बिकॉज इट इज़ अ रिक्वायरमेंट. कहीं ना कहीं जाके ना तुम अटक जाओगे, बिकॉज एट सम लेवल लेट्स से यू आर फाइन राइट नाउ बिकॉज यू आर रिपोर्टिंग टू पीपल. एट सम पॉइंट इन टाइम यू विल बी इन योर 40s लेट्स से, एंड देयर विल बी पीपल फ्रॉम IIMs, XLRI, FMS, NMIMS, SPJIMR जो भी है, वहाँ के लोग तुमको रिपोर्ट कर रहे होंगे.
उस टाइम पे इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल और राइट अ गुड मेल बिकॉज ऑफ sheer rigidity आई वुड से, इट विल बी वेरी सैड. वो एक चीज़ होगा. ऑन द अदर हैंड, because you are from a Hindi medium background, the problem is you are competing with people जिन्होंने मे बी 15-17 years of their life proper English में पढ़ाई की है बचपन से, फॉर्मेटिव ईयर्स के टाइम से, जहाँ पे यू आर एट योर बेस्ट व्हेन इट कम्स टू अब्जॉर्बिंग कंटेंट, राइट. उनके साथ तुमको compete करना है. सो ऑफ कोर्स इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू पुट दैट एफर्ट इन. दैट इज वन थिंग दैट इज देयर. अब हो सकता है कि नहीं, डेफिनेटली हो सकता है. मतलब आई नो पीपल जिन्होंने किया हुआ है, तो डेफिनेटली पॉसिबल. क्या करना चाहिए उसके लिए? देर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट, एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इन जनरल, नॉट जस्ट फॉर कैट. बट दो चीज़ें, वन इज़ रिटर्न स्किल्स, वन इज़ स्पीकिंग स्किल्स. तो रिटर्न स्किल्स के लिए आज के ज़माने में तो मतलब नो बडी शुड हैव प्रॉब्लम इम्प्रूविंग द रिटर्न स्किल्स. ग्रामरली लेट्स से है, तुम्हारे पास फ्री भी मिल जाता है वहाँ पे. तो यू जस्ट पुट राइट समथिंग, क्रिएट कंटेंट, अपने से क्रिएट करो. एक स्टोरी लिखो बैठ के, कुछ भी स्टोरी लिख दो. राइट द स्टोरी अबाउट द हेयर एंड द टॉर्टोइज इन योर वर्ड्स, इंग्लिश में लिख दो. पुट इट ऑन ग्रामरली और ऑन चैट जीपीटी एंड से कि भाई इसमें इवैल्यूएट करके बताओ कितना ग्रामेटिकल एरर्स है. राइट अ फ्रेश स्टोरी नेक्स्ट टाइम, कुछ और स्टोरी लिख दो. जो भी कुछ एसॉप्स फेबल्स वगैरह जो भी सुने होंगे बचपन में, वो स्टोरीज लिखना चालू कर दो. एंड ट्राई टू गेट योर स्कोर इंप्रूविंग फ्रॉम से 30 से 40, 50, 60, 70, 80. तो धीरे धीरे वो एक्सेप्टेबल लेवल पे चला जाएगा. दैट इज वन थिंग यू कैन डू रिटर्न स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी मेकिंग प्रेजेंटेशंस, यू आर गोइंग टू राइट मेल्स. अब तुम अगर कंपनी के एमडी या सीईओ को मेल लिख रहे हो, यू कांट मेक ग्रामेटिकल एरर्स इन दैट. दे कैन मेक ग्रामेटिकल एरर्स, राइट, बिकॉज दे आर इन अ पोजिशन ऑफ प्रिविलेज. बट तुम नहीं हो, तो तुमको अच्छा मेल लिखना ही पड़ेगा. सो मेक श्योर योर रिटर्न स्किल्स आर ऑन पॉइंट 1. And writing gives you a lot of confidence. Speaking, of course, seems to be more difficult and engaging and all, but written skills give you that confidence जो speaking में भी translate करता है. So this is one thing that I would want people to do. Second thing is speaking skills. अगर बात करनी है तो generally क्या होता है, people who come from a Hindi medium background let's say, और come from थोड़ा rural area से आते हैं, semi urban area से आते हैं, उनके आसपास के लोग भी इंग्लिश बात नहीं करते. So they have no way to figure out whether they are improving or not, because there is no one to talk to. Now in that case, of course, if you are from a urban setup, तो यहाँ पे Toastmasters वगैरह होते हैं, institutes होते हैं. I'm sure there are people who get together and speak and improve their skills. वो नहीं करना है, नहीं हो पा रहा. Do one very simple thing. Record yourself. मिरर के सामने खड़े रहो, record yourself. Doing what? Take a book. Read that book. Try to read multiple lines without stuttering, without stopping. ठीक है, बिना पॉज के पढ़ना शुरू करो. मतलब आराम से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जल्दी पढ़ना है, नहीं, आराम से पढ़ो. बट ट्राई टू रीड इट विदाउट ब्रेकिंग योर फ्लो. पहले एक लाइन में फ्लो ब्रेक हो जाएगा, फिर 2 लाइन, देन यू विल बी एबल टू रीड अ पैराग्राफ, अ पेज, राइट. धीरे 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 योर स्पीकिंग स्किल्स विल ऑल्सो इम्प्रूव. देन डू द एक्टिविटी दैट आई हैड सेड पहले वाला. तो हेयर एंड टॉर्टोइज का स्टोरी है, उसको नरेट करो इंग्लिश में, मिरर के सामने खड़े रह, रिकॉर्ड योरसेल्फ. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट. इट्स नॉट समथिंग कि 15 दिन में खत्म हो जाएगा करके. हुएवर इज क्लेमिंग टू टीच यू इंग्लिश इन 15 days, आई डोंट बिलीव दैट पर्सन. ठीक है, बिल्कुल आई डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन एट ऑल. तो नहीं हो सकता. वो तुमको शायद कुछ फ्रेसेस रटवा लेंगे तुमसे. यू विल बी एबल टू मेमोराइज अ फ्यू फ्रेसेस एंड गिव आंसर्स टू क्वेश्चंस. हाँ, वो हो सकता है, बट यू कांट लर्न इंग्लिश. ठीक है, तो ये करना है तो ये 2-3 चीज़ें करो. देयर इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट इन दिस बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स, जहाँ पे इट्स कॉल्ड वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. लेट्स से आई गेट इन टू दिस वेट लॉस रेजिम पे मैं चला जाता हूँ. ठीक है, माई ऑब्जेक्टिव इज टू लूज 10 kgs इन 6 months, या 10 kgs इन 5 months पकड़ लो, मैथमेटिकली ईजी हो जाएगा. नाउ आई एम थिंकिंग यार हर महीने में मेरा 2 kg कम होना चाहिए करके, बट ऐसा नहीं होता. द फर्स्ट मंथ यू विल रियलाइज हार्डली एनी चेंज इन योर वेट. द नेक्स्ट मंथ यू विल रियलाइज 1.5 kg कम हुआ, अगेन बिलो एक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट मंथ यू विल रियलाइज 2 kg कम हुआ, यू लाइक ठीक है करके. बट मंथ्स 4 and 5 में यू विल लूज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट. तो वो एक्सपोनेंशियल होता है. नाउ जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं और जो कर्व बनता है, उसके बीच में देयर इज अ गैप, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. अ लॉट ऑफ पीपल गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज मेरा 2 kg का एवरेज तो बैठ ही नहीं रहा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गिव अप इन द मिडल, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम स्क्रैच. तो यहाँ पे एक चीज़ आएगा दैट सडनली यू विल सी यार 15-20 days भी हो गए हैं और मुझे कुछ भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा अपने में, हार्डली मैं कुछ कर पा रहा हूँ. बट दैट डजंट मीन यू गिव अप. यू स्टिक टू इट, you look at your progress after 6 months, 1 year, you will see progress happening. Because again, you are competing with people who have done this for 15-17 years of their life. You can't beat them in 15 days. अगर ऐसा तो फिर क्यों लोग मेहनत करते हैं 17 साल के लिए, right? So it's not as easy as that. It's not going to be easy, but it's a life skill. It's a life-changing skill. मतलब communication will help you throughout your life. Make sure you are working on it. 99 percentile, as I said, आ जाता है वो. It's the outcome. राइट. प्रोसेस तुम्हारा ठीक होगा, आउटकम्स तुम्हारे फेवर में मोस्टली आ जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट द आउटकम्स.
Understood, sir. So, sir, I've been reading a lot that skills matter more than degrees nowadays. So, what do you think? Are IIMs today still worth it? So of course they are worth it. मतलब people compete and there is a big industry जो उसके अराउंड बिल्ट हुआ है एंड देन मतलब काफ़ी स्ट्रगल करते हैं लोग एंड करते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स वर्थ इट. इट्स नॉट एज इफ उसका रेलेवेंस ही निकल गया है. एंड आई एम्स ऑल्सो टीच यू स्किल्स. ऐसा नहीं है कि आई एम्स सिर्फ किताबें पढ़ाते हैं बैठ के, नहीं है. आई एम्स ऑल्सो टीच यू लॉट ऑफ स्किल्स. IIMs का इंपॉर्टेंस या MBA डिग्री का इंपॉर्टेंस अगर देखेंगे इट्स काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट दैट यू गेट. ठीक है, तो कोई तुमको पूछ लेता है वन फाइन डे, यार प्रूव टू मी दैट यू आर अ गुड मैनेजर. लेट्स यू गो एंड सिट फॉर एन इंटरव्यू एंड दे लाइक बताओ तुमने क्या किया है मैनेजमेंट में, तुम क्यों, व्हाई शुड वी हायर यू, राइट. देयर आर टू वेज टू आंसर दैट क्वेश्चन. वन इज लाइक आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वट एवर थिंग्स आई हैव डन, राइट. अरे मैं जब ये कंपनी में था तब मैंने इसका ग्रोथ 2x कर दिया था, एक प्रोडक्ट का ग्रोथ किया था. मैंने कंपटीशन से 5% मार्केट शेयर अब्जॉर्ब कर लिया था. मैंने 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे. मैंने 10 लोगों का टीम हैंडल किया था. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आई हैव डन एज अ मैनेजर. द अदर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन इज भाई सर्टिफिकेट दिखा दो, आई एम अहमदाबाद का डिग्री है मेरे पास, इसको देखो, अब मेरे से क्वेश्चन पूछो. द पर्सन लाइक अच्छा तुमने आई एम अहमदाबाद से MBA किया, मतलब ठीक है, यू शुड बी अ डिसेंट मैनेजर. सो एन IIM डिग्री इज रेलेवेंट बिकॉज इट गिव्स यू दैट वैलिडेशन. अब वो इंटरनल मुझे भी वैलिडेशन मिलता है कि यार मैं अच्छा मैनेजर हूँ बिकॉज मैं अहमदाबाद से हूँ. सामने वाले को भी वैलिडेशन मिलता है बिकॉज ये इंसान IIM से तो यार अच्छा मैनेजर होगा. तो दैट इज वेयर द डिग्री कम्स इनटू द पिक्चर. आफ्टर मे बी योर फर्स्ट सेकेंड थर्ड जॉब, या डिग्री मैटर नहीं करता. आज शायद आधे लोगों को पता भी नहीं कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ा हूँ. इट डजंट मैटर एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द सेक्टर. ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ FMCG में बैठ के बात कर रहा हूँ. आई एम अ पार्ट ऑफ द MBA एंट्रेंस टेस्ट सेक्टर इंडस्ट्री, जो भी उसको बोलो. पीपल विल स्टिल नॉट नो विच कॉलेज आई एम फ्रॉम. ठीक है, वो लोग अज्यूम कर लेंगे कुछ तो चीज़, बट शायद उनको नहीं पता होगा मैं कौन से कॉलेज से हूँ, विच इज़ फाइन. बट वो एक चीज़ होता है. सो देर इज दिस मूवी, आई डोंट नो मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड इट, इट्स कॉल्ड लक बाय चांस, राइट. उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एक डायलॉग है. मतलब देर इज अ कैमियो बाय शाहरुख खान इन दैट मूवी एंड दैट मूवी इज लाइक रियली क्लोज टू माई हार्ट, राइट. इट्स वन ऑफ दोस अंडररेटेड मूवीज दैट आई जनरली रिकमेंड पीपल कि भाई इसको देख लो, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा लाइफ में. एंड लक प्लेस अ रोल, बट हाउ डू यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट इज वॉट क्रिएट सक्सेस फॉर यू. उसमें द लाइन इज तुम्हारी फर्स्ट फिल्म तुम्हें चुनती है, पहली फिल्म तुम्हें चुनती है, लेकिन उसके बाद जो तुम करोगे वो तुम चुनोगे. सो इट द सेम गोज फॉर योर जॉब एज वेल. Typically inside a B school, your first job will choose you because there are so many people sitting there. Everybody wants the best candidates on campus, so they will select you. तुम सिलेक्ट नहीं करोगे. ऐसा कोई नहीं करेगा कि मैं सिर्फ HUL में अप्लाई करूंगा बाकी अप्लाई ही नहीं करूंगा. ऐसा नहीं होगा. यू विल बी लाइक मैं 10 जगह पे अप्लाई करता हूँ, जिसको लेना है ले लो. तो योर फर्स्ट जॉब सिलेक्ट्स यू, चूजेस यू, बट यू चूज योर सेकेंड जॉब. उस टाइम पे तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है. उस टाइम पे यू विल अप्लाई टू कंपनीज, यू विल गो एंड सिट फॉर इंटरव्यूज दैट यू लाइक एंड यू विल जॉइन अ कंपनी विच यू सी योरसेल्फ हैविंग अ गुड फ्यूचर है. वो करेंगे तो वो आगे जाके वहाँ पे तुम्हारा बी स्कूल मैटर ही नहीं करता. इफ़ यू हैव डन वेल इन योर फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, 2 जॉब्स में अगर अच्छा काम कर लिया है तुमने, 2 रोल्स में अच्छा काम किया है, देन नोबडी इज गोइंग टू रिजेक्ट यू बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम IIM अहमदाबाद. ऐसा नहीं होगा कॉर्पोरेट के अंदर, राइट. यू हैव टू रीच आउट टू द राइट पीपल, टू द राइट थिंग्स, हैव अ गुड वर्क एथिक एंड ऑल दोस थिंग्स. वो कर लोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा. सो ओवरऑल अगर 10-20 साल की बात करोगे, IIM का डिग्री शायद मैटर नहीं करेगा. बट हाँ, इमीजिएटली अगर बात करोगे 2 साल के बाद, देन दैट IIM का डिग्री इज गोइंग टू बी मच मोर पावरफुल देन यूर 2 साल का वर्क एक्स. सो इट विल गिव यू अ गुड हेड स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ योर करियर, विच बेसिकली मीन्स यू आर गोइंग टू रिटायर 1 or 2 levels above where you would have retired otherwise. एंड जैसे लोग बोलते हैं 50 के बाद इज when you create wealth in your career, right. Last 20% of your career will create 80% of your wealth. Pareto principle यहाँ पे भी अप्लाई करता है, राइट. तो वो 20% तुम किस लेवल पे बिताते हो, दैट इज बेसिकली गोइंग टू डिफाइन योर लाइफ का सेविंग्स. एंड इफ यू आर फ्रॉम एन IIM, योर 20% इज गोइंग टू बी 1 or 2 levels हायर कंपेयर टू समवन एल्स हु इज नॉट एन MBA. So that is the difference that I think an IIM makes. So should we be saving up right now or not, sir? So again, as I said, right, we had a very insightful conversation with Abid the other day. And नहीं करना चाहिए. मतलब at this point in time you don't save, you don't start getting into अगर मैं यहाँ पे ये SIP करूँगा तो मेरा कितना कंपाउंडिंग हुआ. You don't get into these things in your 20s. 30s में कर सकते हो, 20s में मत करो. But I'm not saying कि start spending money. One thing you can do is you can spend on things that you genuinely like. यार मतलब मेरा बचपन का सपना रहा है कि मुझे एक PlayStation खरीदना है, let's say, and you have enough money that will help you buy that or whatever, sustain उसके बाद भी तो खरीद लो यार. मतलब you should be happy as well. One thing. Also if you have an alternative, let's say, तो 2,000 रुपये का SIP करने से अच्छा if you go and join a gym, let's say, and invest those 2,000 rupees in that, then you will have better health, which means you will be able to earn for a longer amount of time. हो सकता है.
स्किल बिल्डिंग में भी यू कैन इन्वेस्ट मनी इन योरसेल्फ कि भाई ये कुछ कोर्स मिल रहा है करने के लिए, इट्स अ 50,000 का कोर्स व्हाटएवर, बट डू इट बिकॉज इट इज एडिंग वैल्यू टू यू. वहाँ पे मैं नहीं सोचूंगा कि यार 50,000 ये कोर्स में देने से बेटर मैं अगर इसका SIP करूँ या इसको स्मॉल कैप में डाल दूँ या कोई स्टॉक के अंदर डाल दूँ, पेनी स्टॉक के अंदर, तो कल को जाके इससे मुझे लाखों मिल सकते हैं. नो, दैट इज नॉट व्हाट आई वुड एडवाइज पीपल टू डू. तो सेविंग करो, बट ओनली आफ्टर यू हैव satisfied your new needs, wants, desires. Once you earn that kind of money, is what I would suggest. लोग ऐसे मतलब वो pennies के पीछे भागते हैं and they don't look at the entire picture, and then they are going into their 40s with a lot of regrets. A lot of money, yes, but a lot of regrets. So one thing again, I will go back to that podcast. एक बहुत interesting चीज़ बताया. So when you are 50 years old, you are sitting at home. What will you remember more? 25 ईयर्स पे मैंने कोई एक चीज़ खरीदी थी, वो तुमको ज़्यादा फॉन्डली रिमेंबर तुम करोगे, या फिर 25,000 पे जो SIP क्या था उसके बारे में तुमको ज़्यादा फॉन्डली मेमोरीज आएंगे. ऑफ कोर्स यू विल थिंक अबाउट द थिंग दैट यू परचेस्ड. सो थिंक अबाउट व्हेन यू आर 50 ईयर्स ओल्ड व्हाट इज गोइंग टू गिव यू मोर हैप्पीनेस. एट द सेम पॉइंट इन टाइम यार डोंट गो बियॉन्ड योर मीन्स. रैंडमली खर्चा मत करो जस्ट टू शो पीपल. देयर इज अनदर साइड टू इट एज वेल. जैसे फाइट क्लब में देयर इज दिस थिंग, देयर इज बुक फाइट क्लब, उसमें देयर इज दिस कोट, राइट, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विद द मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल यू डोंट लाइक. So don't get into that habit, but मतलब be content. अभी savings वगैरह का इतना ज़्यादा मत intensity का मत सोचो. So this podcast is what that expenditure for me would be like. This is something that I would look back on and be content with, sort of a thing. So sir, one thing you said about people, you make most of your wealth in your 50s. So the thing is, I've been reading a lot about how ageism or sort of discrimination against elderly individuals in corporates exist. Is that real? Is that happening? Is there a real preference for young people in corporates? What is your take on that? See, it depends on the roles and everything. One reason why ageism might work or might be happening is purely because your skills इतने fast develop हो रहे हैं ना, that it's very easy for people to become obsolete. So someone who has just been calling people up and asking them to do a certain role, let's say sales में generally वो काम होता है, right, but has no skills when it comes to say Excel, let's say, यार वो बहुत जल्दी redundant हो जाता है, because the same thing can be done by a lot of people. It can be done by systems, जिसपे system ही तुमको prompt करेगा कि भाई तुमको ये करना है, तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा करके. So then redundancy आ जाता है. So that is one thing, people are becoming redundant very quickly. And it's a lesson for today's generation as well, that if you are doing something यार मतलब obsolete नहीं होना है. That is my biggest fear honestly in my life as well. I don't want to be obsolete at any point in time. मतलब I want to be updated with anything that happens, be it pop culture references से लेके tech से लेके whatever is happening, I should be on top of things till the time I can. मतलब physically जब तक मैं समझ सकता हूँ चीज़ों को, till the time I can learn, I want to learn. तो that is one thing. I am pretty sure that if you are मतलब even if you are slightly elder compared to the average age of the organization, but if you are good at your job, I don't think any company will want to let go of you only because you are an older individual. But given a choice, if an older individual is there with the same skill sets, you find someone who is a younger individual, purely because of the longevity that the younger individual brings to the table, you might prefer the younger individual. It's the same thing as saying, right? मेरे पास दो 99.5 percentilers आए हैं, एक के पास 999 प्रोफाइल है 999, एक के पास 888 प्रोफाइल है. मैं किसको प्रेफर करूंगा? आई प्रेफर 999 बिकॉज आई हैव मोर फेथ. ऐसा नहीं है कि 888 वाला कचरा है, बट 99 वाला अगर मेरे को एक पे ही बैट करना है तो मैं इस पे बैट करूंगा. वैसे सेम थिंग हैपन्स देयर एज वेल. तो विथ इफ यू हैव अ गुड स्किल सेट, देन आई डोंट थिंक एज शुड कम इन द पिक्चर. बट हाँ मतलब you have to guard yourself against obsolescence and जो you can't be in a redundant job. मतलब वो redundancy में तुम नहीं फंसने चाहिए. Basically we need skills to show for the extended age. Yeah. Understood. And you have to keep on learning. मतलब you can't just say कि I am 50, I will not listen to any 30-year-old around there करके. वो attitude नहीं होना चाहिए. Even B schools के अंदर भी बहुत लोगों को ये attitude होता है that just because they have maybe worked for 3 or 4 years and their seniors are basically their juniors technically. अगर कोई fresher आया होगा तो फिर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, यार ये तो क्या है 2-3 साल छोटा है मेरे से, ये मुझे क्या सिखा रहा है करके. नो, अगर यार बात कुछ है, कुछ कोई बता रहा है कोई अच्छी चीज़ तो सुन लो, करना ही नहीं करना इज अप टू यू, बट डोंट स्टॉप लर्निंग इज वन थिंग. सो इवन इफ यू आर लाइक 40, 45, 50 year old, मतलब इफ यू आर स्टिल लर्निंग न्यू थिंग्स, improving yourself, I think you are still relevant. Understood, sir. So, sir, picking up a hot topic next, what is the biggest scam in the MBA ecosystem right now? Okay, so see, MBA honestly will train you to be a good manager
And being a good manager is all about knowing your numbers, knowing your stats properly. And यहाँ पे ironically ये होता है that a lot of statistics are fed into the system and people start believing or start making conclusions on those statistics. And ये पूरे journey में होता है. I'm not saying it's just at one part. Right? To start with, let's say for example you are thinking of enrolling yourself into an institute. अब तुमको इंस्टीट्यूट ए बोलता है कि मेरे यहाँ से 300 लोग IIMs चले गए हैं. इंस्टीट्यूट बी बोलता है मेरे यहाँ से 400 लोग IIMs चले गए हैं. विच इंस्टीट्यूट विल यू चूज, राइट, वन और टू? नाउ देर इज नथिंग टू बी डन अबाउट इट, राइट. 300 लोग IIMs में चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि 301वां नंबर तुम्हारा होगा करके. 400 लोग गए तो 401st नंबर विल बी योर्स. देर इज नो गारंटी व्हाटसोएवर. I have a firm belief that people got into the IIMs, they would have gone into the IIMs irrespective of the institute, right? उससे नहीं फर्क पड़ता, to be very honest. But somehow there is this thing that चलो मतलब न्यूमरिकली मैं अगर कुछ एक बड़ा चीज़ दिखा रहा हूँ then people will be attracted to it and some people might also be attracted to it. They will see कि अरे मतलब कुछ बड़ा चीज़ कुछ अगर हुआ है तो हाँ मतलब इतने 100% आइलर्स यहाँ से हैं या फिर इतने लोग अगर IIMs गए तो फिर मैं भी वही ज्वाइन कर लेता हूँ बिकॉज यू कैन डू दैट, राइट, मैथ की यहाँ से इतने गए तो ये मेरे लिए बेटर है करके. आई डोंट थिंक दैट इज ऑनेस्टली ट्रू. आइडियली यू शुड बी गोइंग फॉर समवन जिसका तुमको समझ में आता है जो बोल रहे हैं वो, right? If you are not able to understand what the other person is saying, even if the best person in the entire country or the most qualified person in the entire country comes and teaches you, you will not be able to understand anything. So एक तो वो मतलब पहले वो पार्ट आ जाता है. The second part is when it comes to kind of applying for colleges or thinking about MBA as a career choice, जो हमने tier 2 में भी डिस्कस किया, right? That कौन सा कॉलेज tier 2 है, कौन सा कॉलेज tier 1 है, तो वहाँ पे एक statistical play फिर से होता है जहाँ पे people think about average placements and the fees of the B school. Now that is wrong at so many levels, right? ROI जो calculate करते that is wrong at so many levels. One, तुम 2 साल का फी को कंपेयर कर रहे हो 1 साल के एवरेज प्लेसमेंट के साथ. That is not something that you can do. Second thing, you are not going to do an MBA throughout your life ना. तुम 2 साल का MBA करके फी भरना बंद करोगे बट तुम्हारा सैलरी तो साल दर साल बढ़ता जाएगा. देन हाउ डू यू से कि भाई मतलब मैं ROI ऐसे कैलकुलेट करूंगा. दैट इज नॉट द राइट वे टू कैलकुलेट द ROI. सो ये सारी चीज़ें हैं. People again get fooled by statistics, right? And there are some nice books by the way on this, how charts lie करके कुछ है, logical fallacies पे there are a lot of books. I would like people to read these kind of things because they will make you better managers, I'm sure. B स्कूल के अंदर जाते हो वहाँ पे there is this thing called average placements. ठीक है, अब ये एवरेज सैलरी जो होता है उसको तरह तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं. एक दो चीज़ें आई जस्ट शेयर फॉर द बेनिफिट. आई एम नॉट सेइंग करते हैं नहीं करते जो भी है, बट हाँ मतलब कर सकते हैं. इट्स अ पॉसिबिलिटी. नाउ इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन. इफ समवन बिलीव्स करते हैं तो करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते. लेट्स से देयर आर 10 पीपल इन अ कैंपस. ठीक है, मुझे निकालना है एवरेज प्लेसमेंट, एवरेज सैलरी निकालना है उनका. देयर आर 5 पीपल हैव गॉटन इनटू वेरी गुड कंपनीज, 5 पीपल हैव गॉटन इनटू नॉट सो गुड कंपनीज. ऊपर के 5 लोगों का मेरे पास अवेलेबल है, उनका पूरा का पूरा ऑफर लेटर मेरे पास है जिसके अंदर इट हैज बीन क्लियरली रिटन दैट दीज 5 पीपल आर गोइंग टू 25 lakhs पर एनम का सैलरी. ठीक है, नीचे वालों का जो मेरे पास ऑफर लेटर है उस पर लिखा है 5 लाख रुपए का सैलरी मिलने वाला है इनको. नाउ आई एम ऑडिटिंग माई गेटिंग माई रिपोर्ट ऑडिटेड एज वेल. मैं क्या करूंगा, मैं नीचे वाले 5 लोगों का ऑफर लेटर या तो लूंगा ही नहीं फ्रॉम द कंपनी. द कंपनी माइट नॉट बी डिलिजेंट इनफ टू गिव मी दोस ऑफर लेटर्स और आई विल बी लाइक मेरे को मिला ही नहीं ऑफर लेटर इसका, वी आर अवेटिंग ऑफर लेटर्स. तो मैं एवरेज कैसे कैलकुलेट करूंगा, 25 ऑफ द 5 पीपल वट एवर आई गॉट डिवाइड बाई 5. तो 25 lakhs पर एनम मेरा सैलरी बन गया एवरेज, जबकि रियलिटी वो नहीं है. माई रियलिटी इज 25 and 5 के बीच का नंबर जो भी है, तो इट शुड बी 15 आई थिंक मैथमेटिकली इफ यू कैलकुलेट इट, राइट. बट मैं दिखा रहा हूँ 25, सो वो इन्फ्लेट हो जाता है वहाँ पे. देन देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर देयर इन दैट सैलरी वाला पार्ट एज वेल. ज्वाइनिंग बोनस होता है, देयर माइट बी ESOPs. सो तुमको ESOP मिलता है बट अगर तुम उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, उसको लिक्विडिटी नहीं कर पा रहे हो, डाइवेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे इस ESOPs का. कंपनीज का IPO ही लॉन्च नहीं हुआ, हाउ आर यू सपोज टू सेल द ESOPs दैट यू आर होल्डिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो वो भी वेस्ट हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें आती हैं. देन देर इज वेरिएबल बोनस. ऐसा भी होता है दैट तुम्हारे CTC के ऊपर तुमको 20% बोनस मिल सकता है. यू माइट बी एलिजिबल इफ यू अचीव 125% ऑफ द टारगेट. 125% टारगेट होगा ही नहीं, मतलब वैसा टारगेट ही वैसा डिजाइन होता है, बट ऑन पेपर यू आर एलिजिबल टू गेट सो मच ऑफ मनी. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. सो स्टैटिस्टिक्स आई थिंक इज द बिगेस्ट स्कैम एट दिस पॉइंट इन टाइम अक्रॉस द एंटायर MBA जर्नी. बाकी जगह पे भी आई एम श्योर होता है, नॉन MBA वर्ल्ड में भी आई एम श्योर स्टैटिस्टिक्स आर मैनिपुलेटेड एंड ट्विस्टेड एंड ट्वीक्ड एंड स्टफ. बट MBA के अंदर मतलब बहुत बार ये बहुत चीज़ें होती हैं.
So one thing that I would suggest people is like be better at reading figures. If something is too good to be true, it is. मतलब it's not true at all. So मतलब don't get into these kind of things. Logical fallacies avoid करो as much as possible. And I think that is what is happening. बाकी तो मतलब scams तो ऐसे generally paper leaks वगैरह ये सब तो आए दिन चलते रहते हैं. Application deadline को push कर दिया, pull कर दिया, ये सब चीज़ें होती रहती हैं. I would not be very bothered about these things. Of course, paper leaks is the big thing. I would be bothered about that, but as long as the larger tests are being conducted fairly, I'm okay with them. But people really need to know their statistics well. नहीं तो they are like extremely gullible, extremely prone to making these kind of errors in the future as well. Understood, sir. And yeah, you told me about you read so much, you have so many projects going on. Any time management tips you want to give me and my viewers? Well, not really. Although I generally have, I'm not doing a lot of things at once, right? So I do it over a period of time. So reading is something that I have been doing since a long time. Although even now I'm carrying a book in my bag. I have a Kindle with me. So I'm reading 1984. It was recommended by a lot of people. George Orwell, right? So 1984 is something that I have just picked up. Yesterday I started reading it. तो वो है मतलब दैट इज़ देयर. तो जब भी ट्रैवल के टाइम पे टाइम मिलता है या फिर आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम शूटिंग अ वीडियो और समथिंग, आई विल मे बी रीड. And I have learned quite a few things a lot later in my life than people usually learn, by the way. I learned how to cycle some 4 years ago. ठीक है, I never knew how to cycle. पता ही नहीं था कैसे करते. 4 साल पहले सीखा. I learned swimming last month. राइट तो नहीं मतलब आई नेवर गॉट टू डू इट एज अ चाइल्ड, राइट. तो ये कर रहा हूँ. सम 3 months ago I got my first PlayStation, so I've been playing some games. That's why the references बार बार जो मैं PS5 करता रहता हूँ, that is purely because I got it some 3 months ago. तो I do 1 or 2 things at a time and make sure that I do them properly, nicely. Reading तो चलते रहता है. Podcast and all तो I listen जैसे ही मतलब if I'm let's say going on a run or doing some basic workouts or something, तो उस टाइम पे listen to podcasts, watch some videos and so on and so forth. So sir, you said whenever you don't have anything to do, you end up reading, but most people end up watching Instagram reels. So do you watch reels, sir, or you refrain? Once a week, I think. Okay, that is a very that is a big. अरे so क्या होता है ना, तो I have my Instagram handle as well. मतलब .99 का मेरा अपना तो है, but .99 का भी there's an Instagram handle. So I just have to see कि भाई चल क्या रहा है वहाँ पे. Of course, it's not very active. I want to make it active. Desperately want to make it much more active than where it is right now. But I generally see कि वहाँ पे क्या चल रहा है. And when I go there, I get into that doom scrolling वाला thing. कि I start scrolling, I start seeing stuff and all. But honestly, what has kept me away from Instagram Reels is this very nice community called Reddit. I know a lot of people are visiting Reddit these days, but I simply love Reddit. मतलब उसमें तुमको न्यूज़ पता चलता है, मीम्स मिलते हैं, गॉसिप मिलता है, all these things you get at one place. So I'm super happy with Reddit. I don't go to Instagram at all. मेरे को सारा मेरा न्यूज़ का डाउनलोड वगैरह जो भी है वो सब उधर से मिल जाता है. तो दैट इज़ माई एंटरटेनमेंट / एजुकेशन / रिकमेंडेशन, सब कुछ वहीं से आता है. So that is something that I have been actively doing last couple of years at least, I think. Understood, sir. So talking to you, I don't feel the age gap at all. As you mentioned that, you know, you have to keep on updating yourself. You talked about Reddit, you talked about Instagram, you talked about building a community on YouTube. These are the things that, you know, my generation is talking about and building. So as you said, you're actually, you know, following what you're preaching. So that is something actively I want to do this. I don't know. There are some people who are scared of old age. Na, so I'm not scared of growing old or something. ठीक है, everybody grows old. It's fine. But हाँ मतलब that obsolescence thing ना, it scares me. I don't want to be in a situation जहाँ पे I can't converse with the person next to me. वो नहीं होना चाहिए कभी भी. That's why you keep yourself updated, and that hunger for learning was always there. बचपन में इतना exposure नहीं था मेरे पास. I come from a slight humble background, you can say. Come from a smaller town. Didn't go to the best school. Didn't have the best academic journey. मतलब my academic journey is 886 by the way. जो मैं 999 वगैरह की बात करता हूँ, नॉट इवन 888 और 887 कुछ भी नहीं है. माई 10th वॉज 84, 12th 88 एंड ग्रेजुएशन वॉज 61, मेडिसिन में था. तो दैट हैज़ बीन माई एकेडमिक जर्नी. बट हाँ मतलब जो भी मुझे नहीं मिला उस टाइम पे, आई एंश्योर दैट आई एम लर्निंग एज वी प्रोग्रेस. तो कीपिंग माई सेल्फ अपडेटेड इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आई रियली एंजॉय डूइंग. So sir, there is this quote, the best time to plant a seed was 20 years ago. Yeah. The next best time is now. So I think that would really resonate. True. With this one. Yes sir, that's about it from my side. That's about it sir from my side. Thank you so much for taking the time out and enlightening all of us.
My pleasure. Thank you so much for inviting me. I think it was a very good experience, to be very honest. And again, these kind of interactions I have observed, they also allow me to think, right? So I am always someone who will keep on thinking कि क्या improve कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. So this interaction also gave me some clarity in terms of what I want to do as well, आगे जाके. And yeah, I'm thankful for that as well. Understood. And one thing, sir, I would like to tell my audience as well. This is a very big deal for me. I've been watching sir through a screen, sitting next to him. It's a big deal. I uploaded an online sort of a screenshot of our Zoom call as well. My audience went into a frenzy. They were very happy that I'm getting to do this. So I'm really glad that I'm sitting here. So thank you so much. Thank you so much.